I don't know. Anang Mohan Prabhuji chat online आ गए हैं. Yeah, I'm here. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, धन्यवाद. Hare Krishna, Prabhuji. Pranams. Nice to see you. Yeah, nice to see you. So sorry for the delay. I miscalculate the time because I'm in other country now. But it's very nice to see you after a long time. For you. Yeah, absolutely. Same here, Prabhu. Same here. Yeah. So it's very good to see you again. Yeah, I think so. So let's start with you, and we all are waiting that you will share your experiences with the Gurudev, and you have a very nice and beautiful seva for to Gurudev. So let's start. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को मेरा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दीदी. दीदी अभी आनंद मोहन प्रभु जी हैं, वो बोल रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रभु जी को लेंगे. Okay, so maybe I can start, Prabhu? Yes, you can start. Okay, yeah. Yeah, so sorry, it's because your camera is getting a little bit stuck, but thank you so much. So, oh, Hare Krishna, Shyam Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा दीदी, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ. दीदी अभी अनंग मोहन प्रभु जी हैं मैक्सिको से, वो स्पीक कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपको बुलाएंगे. Okay, thank you. Gaurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Om Akhyanti Rimandasya Jananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Bhanga Swami Tinamine. Om Brindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyabhatyai Namo Namaha. Vancha Kalpataruvyas Cha Kripa Sindhu Vyayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first, I want to offer my humble Dandavats Pranams at the lotus feet of my beloved spiritual master, Om Vishnupad Paramahamsa Paribra Yakcharishtatrasata Shishimat, Srila Bhaktivedanta Bongo Swami Maharaj, and simultaneously to the lotus feet of Nitya Pravistam Vishnupad, Ashtatrasata Shishimat, Bhaktivedanta Srila Paman Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj, and all the senior devotees and all the Vaishnavas here. So I feel glad and I feel very happy to be here and sharing with all my God brothers here. And I feel very fortunate because actually this is the mercy of Gurudev. Like Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he said that he was creating a home where everybody can live and join together. And this is what we are looking right now. Like Gurudev is doing the same thing, is creating this home where everybody can live peacefully under his guidance and preaching the holy names and chanting. So on the Bhagavad Gita, it says, Tad vidi pranipatena pariprashna sevaya upadekshantite yana janinas tatadarshina. So that means that one should be surrendered to the lotus feet of the spiritual master and serve the spiritual master. So actually, what means serve the spiritual master? We know that there are two ways that we can serve the spiritual master. We can serve the spiritual master in Bani and Bapu. We can serve the spiritual master like physically. Gurudev said like you can serve like washing the clothes, cooking for Guru, like doing any service, physical service for Guru. And also we can serve the Guru by instruction. And what does this instruction means? This instruction of Guru means like preaching the holy names around the world.
And Srila Gurudev has been preaching for more than 20 years, especially on Western countries, these holy names. So on Chaitanya Charitamrita, it says like Prithiviti Yacha Yatara Nagaradigram Sarvata Prachar Hoi Vemoranam. So this holy name, this Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, will be preached in every place and in every village around the world. And Srila Gurudev has been following the instruction of his spiritual master, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj, to preach in these countries. Like we know that sadhu can be doing bhajan, sadhana and bhajan in Vrindavan. So why the sadhu, if the sadhu is able to do sadhana and bhajan in Vrindavan, is coming to the Western countries, is coming to these places, only because he is looking that the conditioned souls, the Badajivas, are suffering. So the Vaishnava, like Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, he said that, what is a Vaishnava? Vaishnava is someone that can relieve the heart. So because all the Vaishnavas, Sri Guru and Vaishnavas are looking that we are suffering in this material world, they go out of the holy place just to bring this message to and bring this relief to the conditioned souls that we are suffering in this material world. So Srila Gurudev has been traveling in this way, and I've been looking how Gurudev, I've been very fortunate to see how Srila Gurudev has been preaching on the last 10 years, like just something small, like I was serving a Western guru for 10 years before meeting Gurudev. And at that time, I was feeling like my faith was a little bit broken for some politics and stuff. So then Sripad Bhaktivedanta Sayan Maharaj came to Mexico, and he said, just pray. He said, just pray to your deities, your Gornitai deities, and pray to Srila Narayan Goswami Maharaj. He said, Srila Narayan Goswami Maharaj, he is Raman Manjari. And you don't know how powerful he is. He can do any arrange for you. Like he's so merciful that if you really wish Srila Narayan Goswami Maharaj to be your guru, he will put this guru in front of you. He will be manifesting himself through someone. That's what Sripad Bhaktivedanta Sayan Maharaj told me. And I remember that we prayed together at the time. And like 1 month later, I was just going through the internet, through YouTube, and I listened to the Harikatha of Srila Gurudev. At the time, the Harikatha was, I think, in Holland. Gurudev was giving some Harikatha in Holland. So I listened to this Harikatha back in 2012. And I said, I was thinking like, this is the Harikatha of Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. So I don't know who is him. I don't know his name, but I just want to be close from him, and I want him to accept me as his disciple. So I found Srila Gurudev's email on the Pure Bhakti website, and I sent him a message, and that's how I got in contact the first time with him. Actually, I didn't meet him physically until 2014, that I went to Brazil and took Diksha there, because he just gave me like all the mantras and Harinams through Skype after I gave up this not bona fide guru. So this is actually the power of the seva also of the devotees, because if there were no devotees posting the Harikatha on Facebook, it was not possible. Otherwise, it was not possible for me to approach Srila Gurudev. So don't think that anyone look or watch the Harikatha on Facebook, because this is so powerful. Actually, Srila Gurudev was sharing with me this last time. I was asking if we get the same benefit if we listen the Harikatha from Facebook than if we listen the Harikatha like physically. And Srila Gurudev said that you receive the benefit, there's some benefit,
but if you don't listen the sadhu at the same time, you only receive jnana. You only receive the knowledge. He said, but if you are in front of the sadhu and you are listening the Harikatha like next to the sadhu from his lotus lips, you receive bhakti. So Srila Gurudev said that that's the difference if you listen the Harikatha on any platform and if you listen the Harikatha like right away next to the sadhu. So we know that even with just one moment or a second of association of sadhu, we can release all kind of anarthas, all kind of material desires from our heart. So sadhu sangha sarva shastra koi. So Srila Gurudev is saying how important is sadhu sangha. The scriptures and the shastra are saying how important is to be right next to sadhu and serve sadhu. So Srila Gurudev, he's not only giving us this chance to have this sadhu sangha. Srila Gurudev also spent like 30 years with his gurus, learning all shastra, learning all shlokas. Srimati Umadidi one time told me like, you don't know how many seva your Gurudev did. Like, I remember back in the 80s, back in the 90s, looking your Gurudev, he just going with a dhoti or sometimes some gamcha, just like a broken gamcha or broken dhoti with holes going into a bike just to ask for bhiksha in Mathura. So he said, now you are looking at your Gurudev like traveling around the world. He received some fancy clothes or some gift or dakshin from his disciples, but actually that is not his desire. Srimati Umadidi told me like, I just saw how he gave everything just to go and live in Mathura. And he was all the day like asking for bhiksha for the temple, was cooking, was cleaning. Srimati Umadidi told me that one time that sometimes it was like so hot in Mathura at Keshavali Gaudiya Mat. And sometimes Srila Gurudev and other brahmacharis, they were just, you know, exchanging the fan because there was not electric fans at that time. So they were going and just trying to use the fan, you know, to relieve from the weather to Param Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj. And she told me like how he was sleeping only a couple of hours because at that time he had to chant ask for bhiksha. Also, he had to chant his 64 rounds and also to learn many shlokas every day. She told me that at that time they were asked to learn at least 10 shlokas every day. So we know now for our conditioned souls and Balajiva is sometimes very hard to learn one shloka in one day, but Gurudev was doing 10 shlokas every day and doing all this service and serving all these Vaishnavas. So Srila Gurudev is traveling just to give his mercy, the mercy and teaching the message of this Guru Parampara. I think it's not that I think, what I heard from Vaishnavas is that we are very fortunate because we are on a special line. We are not just on the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Like, we are very fortunate because we are on the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. But what I heard from Sripad Siddhanta Maharaj and Srimati Umadidi is like, we are the most fortunate souls because we are on the line of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. On the line, he came and gave all this message and tried to preach to the Western countries. And before that, Srila Bhaktivinoda Thakur was doing like the first text in English. And then a couple of sannyasis went to the Western countries and trying to preach, but they were not so successful at the time. So then by Krishna's and Chaitanya Mahaprabhu desire, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj came to the Western countries and he preached this holy name around all the Western countries. But then we saw like how Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he came to the Western countries to give something, to explain all this Harikatha. And Param Gurudev said like, it's not that it's not like anything was given before.
I'm just trying to explain what all the other Vaishnavas were given. And what I'm trying to explain to you, like the biggest gift of Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj was this message about Manjari Bab and about this Radha Dashyam. He gave many teachings. He talked like the difference between Lord Vishnu and Krishna and the opulence mood, Aishwarya mood of the Lord, and Madhurya, and this Madhurya Bab of the Lord, like Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj preached so strong about this and preached so strong about the message of the Gaudiya Math and tried to reestablish all the teachings of the Gaudiya Math from the Westerns that were a little bit lost. And now Srila Gurudev is continue traveling just to keep this Radha Dashyam and this Manjari Bab. We actually don't understand what is this Manjari Bab and this Radha Dashyam. We don't understand that. Srila Gurudev said, like, you really don't understand anything. You don't understand anything, but just listen this time. Just once at this lifetime, just listen this Harikatha, just to create these impressions, this Sukriti in your heart. And next life, you will continue the process. But this life, just try to listen this Harikatha. So even we don't understand the level of Harikatha that Srila Gurudev is giving, we're listening this Harikatha by force, by Gurudev. We're being forced by Gurudev to listen this Harikatha because Balajiva has no taste for the Harikatha, has no taste for the Seva, has no taste for Guru Seva, Guru Bhakti. So even that, Srila Gurudev is trying to teach all this to us just to create these impressions in our heart. So sometimes many people, they don't want to receive Harinam. Param Gurudev said one time this, like, many people is trying to not receive Harinam or trying to take Diksha because they are thinking like, I'm not following properly the principles, or how I will promise these principles to take Harinam if I don't follow in the principles properly. But we should understand that if it's not by the grace of the spiritual master, we cannot even follow these principles. So when Guru gives this Harinam and the Guru gives Diksha, so the Guru is giving us this Guru Bhakti, is creating this Sambandha Gyan, so we can relate properly with Krishna. So by his mercy, by his grace, we're able to achieve this, and we're able to start to practice, and we have this power and we have this enthusiasm to go deeper into the spiritual life and to follow these principles and to chant these holy names. Actually, we don't chant. Actually, who really chants is Sri Guru. Like Gurudev said one time in one class, like, actually Guru and Vaishnavas, they don't need to like chant japa and these because they already have a taste and the holy name is that dancing on their tongue. But why Guru is like doing sadhana and bhajan, is getting up early in the morning, is chanting japa in front of the disciples and stuff just to teach the Balajivas how they perform, how should they perform sadhana and bhajan. So I feel very fortunate to being with Srila Gurudev this time, and even having family members and a job. I've been very fortunate to serve Gurudev and travel Gurudev. Like I remember the first time that I was alone physically with Gurudev, I didn't know anything how to serve him properly. I still don't know how to do it properly. But I asked to Srila Gurudev, I don't know how to, attend you properly. And I remember Srila Gurudev said, like, if you want to know how to serve me, you need to be close to the devotees that are very dear for me and to the devotees that know how to serve me. So in this way, you will learn how to serve me properly. And I asked Srila Gurudev, and I'm glorifying this because they are not here now. Otherwise, they will be very ashamed. But I asked Srila Gurudev, so I should learn from who? Can you tell me where I can go to learn how to serve you properly? And he said, just go to Ananga Mohan Prabhu and Jamuna Didi, and they will teach you how to serve properly.
So because of the mercy of Srila Gurudev, also I've been learning so much from my god brothers and having their association and traveling to Gurudev's temples. And Gurudev, anyway, I don't really want to do this, but anyway, Gurudev is always taking me back to spiritual life, taking me back to practice, giving me enthusiasm to go and do parikram also. So one time, actually, Gurudev in Mexico, I remember the first time he went to Mexico, because I'm not in Mexico now, but the first time that Gurudev went to Mexico, one female devotee gave some dakshin to Srila Gurudev. So Gurudev just put his hand, he received like the dakshin, and then Gurudev called the devotee, the female devotee again. Gurudev said, hey Didi, hey, come. So when she approached, Gurudev said like, I don't need this dakshin. This is not dakshin. Take your money back. Take your money back. He said, what is dakshin? Dakshin is to leave your heart in my hands now. So something in my heart moved at the time when I listened to Gurudev like saying this. And at that time, I was like the only disciple of Srila Gurudev in Mexico. And many sannyasis sent me letters telling me, ask to your Gurudev to not give Harinam to anyone, because they are really new and your Gurudev is coming for the first time. And we don't know if your Gurudev will come back later to take care of these people. So ask to your Gurudev to not give Harinam to anyone on his first visit. So actually like 3 Vaishnavas, 3 devotees gave me or sent me these emails. And I told Gurudev, and Gurudev said, like, I don't follow the instruction of no one. I follow the instruction of my Guru, and I'm responsible to take of my Guru. So Srila Gurudev gave Harinam to everyone, and he created like now a big community. And at the beginning of at the end of the first visit, one devotee asked, Maharaj, when you will come back? This is your first time. So Maharaj, when you will come back? And Gurudev said, I promise you to come back twice per year, because the only place where I go twice per year, he said, is Brazil and India. But I promise to come to Mexico twice per year. So from that time, Gurudev has been coming twice every year. And Gurudev then opened the Sri Narayan Goswami Gaudiya Math just to also create enthusiasm on the devotees, and gave us a place where to discuss the Harikatha, listen the Harikatha under his mood. He said, like, the mood is so very important. We know that there are many sanghas, there are many temples, but our job is to keep the mood of Param Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj. And we should have a proper place to discuss his Harikatha, listening his Harikatha, and worship him and pray to him. So Gurudev gave us Sri Narayan Goswami Gaudiya Math. So I feel very blessed, and I don't think I have any qualification. I really don't have any qualification to glorify my Gurudev. Like the last time, he encouraged me even to by myself in front of the devotees what I feel like chastisement. Gurudev said, when the Guru is talking properly about someone, is giving chastisement. When the Guru is giving chastisement, that's like really mercy. So we shouldn't forget that we are very fortunate to be under the shelter of our Gurudev. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prapyate Sukritai Purva Sanchitai. So we never forget that we are very fortunate, and because we that have this Sukriti, we are under the guidance of a bona fide Guru, under a real Vaishnava that is serving all this Guru Parampara from Srimati Radhika to Srila Narayan Goswami Maharaj. So I pray to the lotus feet, to all the Vaishnavas, and I ask to all my God brothers and my Gurudev to forgive any Vaishnava aparat, because main Vaishnava aparat is to forget Vaishnavas
So I beg for forgiveness from my God brothers and God sisters and all the Vaishnavas and my Gurudev. And I beg for your blessings to be under his association forever. So thank you so much for giving me this chance. So Bancha Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Srila Gurudeva Ki Jai. Srila Gurudev ki jai. Prabhuji, you have a very nice experience, and I'm very grateful that you learned so many shlokas and you have covered so many points. Like everyone said that we are very fortunate, but why we are fortunate? You covered this point. We are fortunate because we are from Mahaprabhu's line, and what our Param Gurudev is giving us is Manjari Bhav, and that's why we are very fortunate. Actually, there are so many gurus in this material world, but in the fourth Sat Sampradaya, only the Madhva Brahm Madhva Gaudiya Sampradaya. In this Sampradaya, we are getting this Manjari Bhav. And why we are getting this? Because we are in touch with Srila Bhaktivedanta Van Gosai Maharaj, who is a loving disciple of Pujyapat Bhaktivedanta Srila Narayan Gosai Maharaj. So that's why we are very fortunate. And I'm very happy that you covered this point, that why we are so fortunate. And you covered that sadhu sang, Saru Shastra Kai. Yes, Gurudev always said, if you didn't listen, understand the Harikatha, no issue. But you just sit and listen. No need to understand what is Manjari Bhav and how we attain this. Just listen. Listen. If you listen properly, then one day Gurudev will bless us and we will reach that Bhav in which Gurudev is doing the bhajan. So it is very nice to hear about the Gurudev from your lips. And you also covered that what is Vani Seva and Vapu Seva, and how Vani Seva is more bigger than the Vapu Seva. So fortunate to listen from you, Prabhu. It's very nice. And you said that Gurudev promised you that he will come to Mexico twice a year. So everyone is keep waiting for Gurudev when he will have the darshan of Gurudev. And if he said that he will come twice a year, it is very fortunate for the Mexicans. And one more thing, you told that one lady who gave dakshina to Gurudev, and he returned that dakshina and said, give your heart to me. Everyone is praying that why Gurudev not taking our heart. So we are also in this mood that we should offer our heart to Gurudev. So it is very great to hear this from you, Prabhu. So thank you, and be merciful to all of us. Please, Prabhu, that Gurudev is loving you so much, and you learned so much shloks, and you heard properly from Gurudev. Very nice. Thank you. Thank you for joining us. No, thank you so much for the opportunity, Prabhu, and I'm looking forward to meet all my God brothers in India soon. So thank you so much. Dandavats Pranam. Meet you in Navdi Parikrama. Yeah, maybe on Parikram this year. Yes. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Gurudev. Now we are inviting Manmohini Didi. मनमोहिनी दीदी, आप कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, गुरुदेव की कृपा है, आप सब लोगों का साथ है, आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा कि आपने गुरुदेव की महिमा के बारे में बोलने का लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। हरे कृष्णा दीदी। जी प्रभु जी। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गौरप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता वनित नाम्ने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिष्प्रेषितं श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी वनं नमस्तभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायना कथा अमृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे
वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने परम पूजनीय परम वंदनीय श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता बन महाराज जी के चरणों में अनंत को करोड़ कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी जी के चरण कमलों में अपना प्रणाम दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं अपना यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने गुरुदेव की महिमा कैसे सुनाऊं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे इतनी कृपा करी है कि कोई शब्द नहीं है। बहुत वर्षों की इच्छा, जैसे एक अंधे को नेत्र दे दिए जाते हैं तो वो सारा संसार देख लेता है, ऐसी मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा की है कि मुझे समझ आ रहा है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या दृष्टि दी है, कैसे कृपा करते हैं, कैसे दयालु हैं, सब पर दया बरसाते हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और हम कहते हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ कि मैं गुरुदेव के पास आई थी, नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे इस माया रूपी संसार से खींचा था। कैसे खींचा, कैसे व्यवस्था करी, समझ नहीं आया, लेकिन आज गुरुदेव तक पहुंचने के बाद समझ आया कि हमेशा मैं, हम, हमारे ये शब्द होते हैं हमारे अंदर, लेकिन नहीं, जो करते हैं हमारे गुरुदेव करते हैं। सारी व्यवस्था हमारे गुरुदेव ने की है। और मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ गुरुदेव से जुड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी युगों से पर्दा पड़ा हुआ था जो मैं गुरुदेव को नहीं देख पा रही थी, न सुन पा रही थी कि मेरे गुरुदेव कैसे होंगे, कैसे नहीं। बहुत वर्षों पुरानी इच्छा थी जो पूर्ण हो गई। मैं, संगीता दीदी रहती थी मेरे पास में यहाँ पे, तो मैं आई तो सबसे पहली दृष्टि मेरी संगीता दीदी पे पड़ी और उनको देख के एक लगता है कि कोई अपना मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो दीदी से मिली, बड़ा पॉजिटिव भाव आया। और धीरे धीरे करके जब दीदी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं मठ जाती हूँ और गुरुदेव हैं, आप किसी दिन समय निकाल के भागवत में चलना। मैं दीदी के साथ नवंबर 2021 में मैं पहली बार गुरुदेव के पास गई। मैंने भागवतम सुनी और पूरे टाइम मेरी दृष्टि गुरुदेव से हटी नहीं। कोई इंसान होता है तो 1-2 मिनट 5 मिनट खींच करके देख सकते, लेकिन वो तो है ही नहीं इंसान, वो तो परमात्मा है। उनके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगी ज्यादा, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो बहुत इस जगत के है ही नहीं। उनको देखते ही मैं देखती कि देखती रह गई। वहां से जब मैं आई तो आने का मन भी नहीं कर रहा था कि मैं नहीं और सुनूं गुरुदेव की भागवत और मैं देखूं। और फिर मैं आ गई, फिर दोबारा से मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों गए। बताया मैंने कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हैं, और बहुत एकदम देख के लगा कि नहीं, मैं अपनी जगह पे आ गई हूँ जहाँ मुझे एक चाहत होती है, अंदर से एक इच्छा होती है, उस जगह मैं पहुंच गई हूँ। तो संगीता दीदी मुझे लेके गई, मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों गए थे। तो गुरुदेव ने जाते ही, गुरुदेव की दृष्टि जब पड़ी तो गुरुदेव ने हमें पूछा नहीं कि आप खाते पीते क्या हो, हालांकि उस टाइम हम लहसुन प्याज खाते थे। और गुरुदेव ने मुझे तुलसी की माला दी कि आप हरि नाम करो। फिर हम आ गए, और उसके बाद में तो गुरुदेव ब्राजील चले गए। तो जो नवंबर से और जो मार्च तक का जो टाइम था, वो ऐसे निकला कि एक एक पग रखते हैं अग्नि पे, हम जलते हैं, तड़फड़ाते हैं। वो अंदर से जो भाव थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब मैं दीक्षा लूंगी। गुरुदेव ने मुझे तुलसी की माला दी, साथ में गुरुदेव ने मुझे एक दृष्टि भी दी कि मैं जब आई तो मुझे गुरुदेव ने माला का महत्व दिखाया
सुबह 4 बजे का स्वप्न आया, उसमें मैं आधी सोई हुई आधी जगी हुई, और वो स्वप्न दिखाया कि माला का, हरि नाम का क्या महत्व है। हम इस संसार में रह रहे हैं, यहाँ से प्राण निकलने के बाद में कैसे हम जाते हैं, और कैसे हरि धन जिसके पास जितना ज्यादा है उसको कैसे गोलोक वृंदावन में कैसे एंट्री मिलती है। तो वो सारा गुरुदेव ने मुझे दिखाया। तो मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मैंने गुरुदेव को स्काइप पे डाला कि गुरुदेव, अभी तक तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन आप आए, आपकी दृष्टि पड़ी, आपने मुझे माला प्रदान की, और गुरुदेव क्या अब मेरी जीने की इच्छा है कि मैं बहुत लंबा जीऊं, अपने इस गुरुदेव के साथ में समय व्यतीत करूं, हर जगह, हर उस धाम पे जाऊं जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी है। क्या गुरुदेव मेरा अंतिम समय आ गया है? तो गुरुदेव ने मुझे स्काइप पे बताया कि नहीं, अंतिम समय नहीं है, आप परेशान मत हो, और ये अंतिम समय नहीं है। जो आपने देखा है, इस माला का ये महत्व है कि कैसे ये माला कहाँ कहाँ हमें लेके जाती है, कैसे लेके जाती है। हरि नाम ही है जो हमें इस माया रूपी संसार से लेके जा सकता है। आप हरि नाम करो। और जब गुरुदेव वहां से आए, तो गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है, तो गुरुदेव हंसने लगे कि अच्छा दीक्षा लेनी है। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, मुझे दीक्षा लेनी है, और मुझे अब गुरुदेव बोले कि ठीक है, आप कल आ जाना। कल जब हम नेक्स्ट डे गए, तो गुरुदेव ने दीक्षा दी, और बड़ी एक खुशी होती है कि मतलब मुझे दीक्षा मिल गई। मैं बचपन से ही सोचती थी मेरे गुरु होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि बचपन से बहुत छोटी थी, तभी से मैं नारायण भगवान की पूजा करती थी, केला पूजन करती थी, सत्यनारायण व्रत कथा करती थी, व्रत करती थी, और हमेशा एक ही चीज बोलती थी, हे प्रभु मेरे गुरुदेव कैसे होंगे। मुझे नहीं पता, इस संसार में गुरु के नाम पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, उसमें वो भी संभव नहीं है। तो मैं हमेशा कहती थी, प्रभु आप ही मेरे गुरु बन के आ जाओ, पहले मैं आपकी गुरु रूप में सेवा करूंगी, उसके बाद मैं आपको प्रभु रूप में सेवा करूंगी। मैं दोनों रूप आपके देखना चाहती हूँ। लेकिन जब मुझे गुरुदेव मिले, तो ये सारी चीजें हट गई कि नहीं, इस संसार में भगवान हैं, प्रभु हैं, साक्षात हैं, सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से वो हम इन नेत्रों से देख नहीं पा रहे हैं। तो बहुत खुशी का दिन था कि गुरुदेव ने मुझे अपनाया अपनी शरण में। और अगर मैं बात कहूं कि गुरुदेव ने क्या दिया, तो क्या नहीं दिया, मैं यही कहूंगी कि मुझे क्या नहीं दिया। मानसिक स्थिति या शारीरिक प्रॉब्लम हो या अननेचुरल प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम से मेरे गुरुदेव ने मुझे बाहर निकाला है। हर तरह की जैसी प्रॉब्लम होती है, मेरे गुरुदेव कभी प्रभु बन के आते हैं, तो कभी नरसिंह देव बन के आते हैं, तो कभी डॉक्टर बन के आते हैं। मेरे गुरुदेव हर एक रूप में आके ऐसी व्यवस्था करते हैं कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं कैसे वहां से वहां तक पहुंच गई। और समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुदेव आगे, बस यही है कि गुरुदेव आगे व्यवस्था करेंगे, बस यही पता है मुझे, यही विश्वास है। हर एक छोटी छोटी चीजों को अगर मैं देखूं, तो भागवतम हो रही थी नरेला में, गुरुदेव भागवतम के लिए थे, और मेरे पतिदेव जा रहे थे, 2 बजे बच्चों की छुट्टी होनी थी स्कूल से, और 3 बजे से वहां पे कलश यात्रा थी। तो ये तैयार होके चले गए। अब मेरी इच्छा थी कि गुरुदेव मुझे कैसे भी कलश यात्रा में बुला लेना, मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं जा पा रही कहीं पे भी, गुरुदेव आप ही कृपा करो, आप ही मुझे बुलाओ। मुझ में तो इतनी हिम्मत ताकत कुछ भी नहीं है गुरुदेव कि मैं आ पाऊं। गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था करी कि ये घर से तो चले गए, और ये अपनी माला को घर पे ही छोड़ गए। आधे रास्ते से ये फोन आता है कि मेरी माला घर पर ही रह गई है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। जब ये आए, तो मैं तैयार होके कि मैं भी चलूंगी। ये बोले कि आप लेट हो गया हूँ बहुत ज्यादा, और बच्चे भी, ये सब निपट जाएगा। मैंने बेटे को साथ में लिया, और मैं गाड़ी में बैठ गई। वहां जाके देखे मेरी कलश यात्रा तो निकल गई होगी, बिकॉज हम 4 बजे पहुंचे। वहां देखे गुरुदेव हमारे तैयार हो रहे हैं। गुरुदेव सब जानते हैं, हर किसी के मन की जानते हैं, वो कहने से पहले हृदय का भाव जान लेते हैं। सब चीजें गुरुदेव अपनी व्यवस्था अपने तरीके से करते हैं। मुझे ऐसा
जो वैष्णवों का जो संग मिला है, जो चरणों की धूली मेरे सिर पे पड़ी है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं कभी कहीं जाती नहीं थी। बहुत ज्यादा कहीं जाने में मन नहीं करता था कि मैं कहीं भी जाऊं, मुझे कहीं ज्यादा पसंद नहीं था। कहीं भी लेके जाओ, मैं हमेशा कहती कि मुझे मेरे घर के मंदिर में ही मुझे छोड़ दो, मुझे यही शांति है, मैं ठाकुर जी की यहीं बैठ के आराम से सेवा कर रही हूँ, हंस रही हूँ, कुछ खुशी है तो हंस रही हूँ उनके साथ, और कुछ दुख है तो रो रही हूँ उनके सामने। तो जब मैंने वहां पे देखा, मठ में देखा, रमनी दीदी है, स्वाति दीदी है, श्याम प्रभु जी है, प्राण गोविंदा प्रभु जी है, संगीता दीदी है, इनको देख के ऐसा लगा कि नहीं, मेरा परिवार तो यहाँ है। इसलिए मुझे कहीं जाना, किसी में भी किसी भी जगह पे जाना मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि मेरी आत्माएं तो अपने इस परिवार के लिए तरस रही थी कि कब मेरा वो परिवार मिले, ऐसा जहां मैं अच्छे से रह पाऊं, अच्छे से उनकी कथा सुन पाऊं। जब भी जाती हूँ तो दीदी से कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिलती है। अब माया जी भी बद है, हम इतनी आसानी से जा नहीं पाते, लेकिन फिर भी रमनी दीदी बहुत कृपा करती है। वो हमेशा फोन करके बोलती है, दीदी बस आप आ जाओ, दीदी बस आप आ जाओ। तो इतना खुशी मिलती, इतना सुकून मिलता है कि मतलब दीदी हमें बुला रही है। इतना सीनियर होने के बावजूद भी दीदी कैसे शीतलता की चादर अगर किसी पे है तो वो मैं कहूंगी कि दीदी पे। समस्त वैष्णवों को गुरुदेव जो शीतलता की चादर है, सरलता की जो चादर है गुरुदेव पे, वो अपने सभी भक्तों को गुरुदेव प्रदान करते हैं। तभी इस युग में भी कभी नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह के भी हैं, इस तरह के हम कहीं भी जाते हैं तो ये भाव हमें नहीं मिलते जो मुझे मठ में मिला, जो अपनापन और हमेशा जो शुद्ध भक्ति की धारा अगर कहीं है तो वो हमारे गुरुदेव के पास है, हमारे समस्त वैष्णव भाई बहनों के पास है। वो शीतलता की, सरलता की जो चादर है, जो अपनापन है, जो शुद्ध भक्ति है, जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो सिर्फ यहाँ है, इस संसार में कहीं नहीं है। अगर हम शांति देखें तो कहीं शांति नहीं है, सिर्फ यहाँ चले जाओ। राधा रमन बिहारी जी के पास जब भी जाते हैं तो इतना सुकून मिलता है, कुछ भी परेशानी हो पता ही नहीं चलता, ऐसे उड़ा देते हैं परेशानियों को। तो ये एक समझ से परे हो जाता है कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ इस तरह का, कि इस तरह का भी होता है। अभी कई बार लगता नहीं है कि मतलब इस तरह का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तो उस जगत में है, इस जगत में कैसे पॉसिबल है। लेकिन हमारे गुरुदेव हैं, वो इस जगत के है ही नहीं, इसलिए वो सब पॉसिबल कर देते हैं। मैं गुरुदेव को एक छोटा सा 2 शब्द कहना चाहूंगी गुरुदेव के लिए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुदेव का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुदेव का द्वार। हम पर कृपा बरसता, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार, कभी ये प्यार न छूटे, गुरु दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुदेव का द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार, कभी ये प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। माता पिता तुम मेरे, मेरे साथी संग सहारे। माता पिता तुम मेरे, मेरे साथी संग सहारे। ये जीवन तुमसे मिला है, तुम जीवन प्राण हमारे। ये जीवन तुमसे मिला है, ये जीवन प्राण हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यारे दुलारे, कभी ये प्यार न छूटे, गुरु का दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुदेव का द्वार। हम पर रहे बरसती कृपा, सदा गुरु का प्यार, प्यार ये कभी न छूटे,
कभी गुरुदेव न रूठे। मुझे यही लगता है और यही सच्चाई है कि मेरे गुरुदेव का द्वार है, मेरा जो परिवार है वो स्वर्ग से भी सुंदर है और सपनों से भी ज्यादा प्यारा है। मैं गुरुदेव ने मुझे इतनी बोलने की अनुमति दी। मेरा गला बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी, कई दिनों से बिल्कुल गला बंद था। मैं यही सोच रही थी कि गुरुदेव मैं क्या बोलूंगी, कैसे आवाज निकालूंगी, लेकिन गुरुदेव ने अपनी व्यवस्था वो खुद करते हैं। हम सोचते हैं हम करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे गुरुदेव सब व्यवस्था करते हैं। सारी सब तरह से जो भी संकट, जो भी परेशानी आती हैं, वो गुरुदेव हर लेते हैं। मेरे गुरुदेव की दृष्टि मुझ पे ऐसी पड़ी कि मैं पहले जो जीवन था, जो माया जगत की खुशियां थी, वो सब फीकी थी। मुझे कोई भी मिलता है, मेरी जानने वाली तो देखती है तो बोलती है तुम्हें क्या मिल गया, पहले सब कुछ था तब तो तुम्हारे चेहरे पे कभी स्माइल नहीं दिखती थी, और अभी सब कुछ बर्बाद होने के बाद में आपका चेहरा इतना लगता है कि पता नहीं आपको क्या आनंद आ रहा है। मैं यही कहती हूँ कि नहीं, जो गया वो माया रूपी था और जो मुझे मिला है वो किसी और के पास नहीं है, क्योंकि मैं श्रीमद् भक्ति वेदांता बन महाराज की शिष्य हूँ। और मुझे बड़ा खुशी होती है, बहुत प्राउड होता है कि गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में जगह दी। इतने उच्च कोटि के होने के बाद गुरुदेव हर छोटी छोटी चीजों को बड़ी आसानी से सुन लेते हैं और स्माइल कर देते हैं। बस तो हमें पता है गुरुदेव की स्माइल ही काफी है। मतलब स्माइल मिल गई गुरुदेव की, गुरुदेव ने एक दृष्टि डाली तो उसी में हमें पता है कि हमारा जो परेशानी है, जिस भी तरह की परेशानी है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। और गुरुदेव हमेशा, हमें खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है बिल्कुल, लेकिन मुझे मेरे गुरुदेव पे विश्वास है कि वो मुझे इस भक्ति धारा में आज नहीं कल पूरी तरह से डुबो देंगे। गुरुदेव ने जो परिकरों को तैयार किया है उस भक्ति धारा के लिए, वो पकड़ के मुझे जबरदस्ती डुबो देंगे। मैं नहीं टाइम निकाल पाऊं, लेकिन मुझे भरोसा है संगीता दीदी पे, रमनी दीदी पे, कि वो मुझे हमेशा वहां ले जाके खड़ी करेंगी। मैं बच नहीं पाऊंगी, ये माया रूपी संसार मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। जब उनके बहुत लंबे मेरे गुरुदेव के हाथ में, माया कब तक पकड़ेगी, कब तक जकड़ेगी, मैं कब तक बची रहूंगी, मैं नहीं बच सकती। संसार से मुझे मेरे गुरुदेव खींच के ले जाएंगे और मुझे उस भक्ति की धारा में डुबो देंगे। और मैं संगीता दीदी का हमेशा हृदय से बहुत ऋणी हूं। मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा उनको बोलती हूँ आप तो मेरी केवट हो। आपने इस माया रूपी संसार से शुद्ध भक्ति की तरफ जो बीच का जो रास्ता था, उसमें आप मुझे मेरे केवट बन के मुझे वहां तक ले गए और आपने मुझे गुरुदेव के हाथ में सौंप दिया। इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। और मैं इनकी हमेशा ऋणी हूँ और मैं ऋणी रहना भी चाहती हूँ, क्योंकि ऋण के ही बहाने से ही हर जन्म में मुझे वैष्णवों के दर्शन तो मिलेंगे। हर जन्म में मेरे गुरुदेव कैसी भी व्यवस्था करके अपने पास खींच लेंगे, इसलिए मैं हमेशा ऋणी रहती हूँ और गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मुझे कभी अपने दर्शन से वंचित मत करना। किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में जाऊं, लेकिन हमेशा आपकी शरण में रहूं, हमेशा आपके दर्शन पाऊं। मुझ पे इतनी कृपा बरसाए रखना गुरुदेव। हरे कृष्ण दीदी। इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मेरे गुरुदेव मुझ पे कृपा करेंगे। आप सब लोग मुझ पे, सब वैष्णव भाई बहन मुझ पे कृपा करें और मुझे हमेशा भक्ति की धारा में खींच के डुबो के रखना, मुझे कभी छोड़ना नहीं। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी जो ये सरल स्वभाव होता है ना, गुरुदेव कहते हैं ये सरल स्वभाव ही हमको पार लेकर जाएगा। तो जिस सरलता से आपने गुरुदेव के दर्शन किए, जिस सरल भाव से आपने उनसे दीक्षा ग्रहण करी और जिस सरल भाव से अभी तक आप उनका गुणगान वर्णन कर रहे हैं, बस यही सरल भाव हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जो सरल व्यक्ति होता है ना, बस हम उसी को
मतलब परमार्थ जीवन मिलता है। तो आपका ये सुन के ना मतलब सबका हृदय द्रवीभूत हो गया होगा। जो आपका विचार है, जो आपकी श्रद्धा है गुरुदेव के प्रति, और जो इतना सुंदर आपने कीर्तन गाया गुरुदेव के लिए, अद्भुत है दीदी। मतलब मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जो ये सरल भाव आपके अंदर है वो मेरे अंदर भी कभी हो। बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप ललायत थी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आप तो बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो आपकी सबकी उंगली पकड़ के चलना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं मैं नहीं अगर मैं दीदी, इस पथ पे आपने चलूं तो मेरे पैर आपने लक रगड़ा के गिर जाएंगे। आपने जिनकी उंगली पकड़ी है ना, रश्मि दीदी की, संगीता दीदी की, वैष्णव की उंगलियां पकड़ के चलोगे तो गुरुदेव की कृपा अवश्य ही मिलेगी। बिना मैं वैष्णव की कृपा के गुरुदेव मिल ही नहीं सकते। नहीं मिल और सकते। जैसे आप बता रहे थे कि कैसे नारायण भगवान की आप पूजा करते थे, वो तो विषय विक्रय है। वही नारायण महाराज, हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, जो आश्रय विक्रय है, आपको उनकी शरण मिल गई। यही सरल हाँ भाव प्रभु है। जी, मुझे अगर मैं सच कहूँ तो मेरे फादर भी हनुमान जी की पूजा करते थे और मेरे पतिदेव भी हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन बचपन से ही मैंने सिर्फ नारायण रूप में ही मैंने पूजा की है। और मैं हमेशा कहीं कोई भी पार्टी हो, मैं अपने घर में बंद हो जाती थी कि मुझे मेरे मंदिर में ही शांति में प्रभु के एक ही प्रार्थना करती, प्रभु आप मेरे गुरु बन के कब आओगे। लेकिन जब बाहर का माहौल ऐसा होता था, ऐसा वातावरण, तो मन हट जाता कि नहीं प्रभु आप ही मेरे गुरु बन के आना, मैं इंतजार करूंगी। और प्रभु जी मैं बहुत लंबे समय, बचपन का ये इंतजार मेरा अब आके इस उम्र में आके खत्म हुआ कि गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव ने मुझे खींचा। मेरे जाने की इतनी वो नहीं थी कि मैं गुरुदेव के पास तक जा पाती, नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे खींचा, मेरी व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था करी कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुदेव अभी भी अगर मैं ये कहूँ ना कि नहीं गुरुदेव ने ऐसे किया वैसे किया, तो मेरे गुरुदेव हर एक इच्छा को हृदय में होती है और वो पूर्ण हो जाती है। मैं बहुत ज्यादा, मतलब गुरुदेव ने जब से गई हूँ, आपने मेरे मानसिक तनाव भी था और मेरे चेहरे पे भी आपने देखा होगा कि मैं गुरुदेव को बोलती, मेरे गुरुदेव तो डॉक्टर हकीम है, जो मैं पहले इलाज करा रही कुछ नहीं हुआ। इतनी प्रॉब्लम में थी कि मैं माला नहीं कर पाती। गुरुदेव से सिर्फ मैंने एक बार बोला कि गुरुदेव पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या हो गया है। गुरुदेव ने, अच्छा गर्मी से हो गया है। गुरुदेव ने देखा, स्माइल किया और बस उसके बाद जब वापस गुरुदेव आए तो मेरा वो चेहरा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कोई दवा गोली उससे कुछ नहीं हुआ, जो किया मेरे गुरुदेव ने किया। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं देख रही थी, लगातार इस तरह का हो रहा है। ये तो है कि मुझे नारायण भगवान की जो मैं करती थी, दिन रात रोती थी मेरे गुरु कब मिलेंगे, कैसे होंगे, तो उन्होंने ही, उनका ही स्वरूप मैं मानती हूँ। मैंने कभी अपने गुरुदेव को हृदय में कभी ये भाव आया नहीं कि वो हमारे जैसे, नहीं, मेरे भगवान ने मुझे दिए, साक्षात अपना अवतार है, मेरे कलयुग के अवतार है मेरे गुरुदेव, तो मेरे साक्षात नारायण का अवतार मानती हूँ। मैंने कभी गुरुदेव को ऐसे नहीं माना और मेरे गुरुदेव हर एक इच्छा को ऐसी पूरी करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे उस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वो छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो अपने सत शिष्य को, मतलब सदगुरु को इस जगत में भेज देते हैं। तो आपके ऊपर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी है, और कृपा की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। नहीं है। मुझे मेरे गुरुदेव के साथ की आवश्यकता है, आप सबके साथ की आवश्यकता है। मुझे आप सबके चरणों में आश्रय मिल जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे साथ चाहिए, कैसे भी इस माया रूपी संसार से मैं निकल के, मैं पूरी टाइम, एक एक क्षण, कोई पल ऐसा ना जाए कि मेरे गुरुदेव की याद में न जाए। कोई क्षण ऐसा नहीं जीना चाहती कि मेरे गुरुदेव की याद नहीं आए। आप सबका साथ नहीं हो, मैं कोई पल ऐसा नहीं जीना चाहती। बस दीदी हम भी गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये सरल भाव हमेशा ऐसा ही बना रहे, और गुरुदेव के चरणों में आपकी प्रीति इसी तरह निरंतर बढ़ती रहे। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, लेकिन आप सब कोई भी गलती हुई हो उसे माफ कर देना मुझे। नहीं, अब हम अ, अर्जुन सखा प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं
कि अर्जुन सखा प्रभु आप आए और अपनी जो अनुभूतियां हैं उनको हमारे सामने वो करें। और ये अर्जुन सखा प्रभु जो है, ये मनमोहिनी दीदी जो भी हमारे सामने बोल रही थी, उन्हीं के हस्बैंड हैं। इन दोनों के भाव बहुत श्रेष्ठ हैं। अब उनके पतिदेव अर्जुन सखा प्रभु जी से हम सुनते हैं उनके अनुभूतियां गुरुदेव के प्रति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतम श्री गुरुन् वैष्णवांसं श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथामृतम तम सजीवम आवधेतम सावधूतम भजन सहतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत बनाइत नाम्ने वंदे हम भक्ति चकोरम गौरांगारज पृष्ठम श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी वनम नमस्तव्यम। श्री राधा एकनिष्ठम रसायना कथामृतम संकीर्तनम आनंदामि गोस्वामिनम वनम नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम्ने नमः गौर किशोराय साक्षाद्वाराग मूर्तये विपुलम रसम हृदय पदाम्बुजाते नमः। नमो भक्त विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर सत्य स्वरूपाय रूपाय वराविर्भाव भूमिष्ठम निर्देशनम साचन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। बादशाह कल्पतरुष्व कृपा सिंधु एवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंदे जगतपते गोपेश गोपिका कांति राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये। वृंदाये तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्त देवी सत्यवते नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरु श्री भक्तिवेदांत मन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ओम अष्टोत्तर विष्णुपाद भक्तिवेदांत श्री पावन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात श्री ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उसके बाद हमारे समस्त वैष्णवी भाई बहन सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसमें विशेषतः स्निग्धा दीदी जिन्होंने हमें हमारे गुरु भगवान से परिचय कराया, रमणी दीदी और श्याम प्रभु जी जिनकी उंगली पकड़कर हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार और बेसिकली इसने गाइडेंस तो हमें सभी वैष्णवों से मिलता है। हमारे गौड़िया मठ का ये परिवार ही इतना सुंदर है कि अगर कोई गलती भी हो जाए तो कोई सबके सामने नहीं बोलता, प्यार से अलग से समझाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ किसी तरह के कोई द्वेष भावना नहीं है। गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन के लिए वर्णन के लिए मेरे पास में कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन एक दो बातें हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे
हमारी धर्मपत्नी जी ने बताया कि हमारा परिचय हुआ, हम एक बार भागवतम में गए, भागवतम से पहली बार सिर्फ एक बार हम गए, उसके बाद में अगली बार हमें तुलसी की माला मिली। बशर्ते उस टाइम हम प्याज लहसुन भी खा लेते थे, ठीक है रेगुलर नहीं, बट मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम 3 दिन प्याज लहसुन नहीं खाते थे, और उसके बावजूद भी हमें तुलसी की माला मिली। जिस दिन माला मिली उसी दिन से हमारा सारा बंद हो गया हमेशा के लिए। घर में क्योंकि बड़ा स्टॉक था वो भी सब क्लियर हो गया। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि माला तुरंत शुरू हो गई, और बहुत जल्दी हमें 6 मार्च 2022 में गुरु दीक्षा मिल गई। गुरुदेव की कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। हम ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कैसे बोले कि गुरु की महानता हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, सब धरती कागज करूं, लेखनी करे सब वनराज, सब सागर की मणि करूं, सब सागर की मसी करूं, गुरु उड़ाना लिखा न जाए। तो हम गुरुदेव का वर्णन तो नहीं कर सकते, गुरु महिमा की वर्णन तो हम नहीं कर सकते, ना हमारी कोई योग्यता है। बट हम ये कह सकते हैं गुरुदेव हमारे साक्षात बेसिकली भगवान है, और भगवान से भी बढ़कर हैं। क्योंकि बढ़कर इसलिए हम बोल रहे हैं, भगवान के हम सिर्फ दर्शन कर पाते हैं, गुरुदेव से तो हम सब बात कर लेते हैं। और महानता है गुरुदेव की, सज्जनता है उनकी, दयामयी करुणानिधि दृष्टि है कि हम परेशान होकर कुछ भी बोल देते हैं, वो सब सुन लेते हैं, हंस के टाल देंगे या हंस के सुन लेंगे। कितने भी थके हुए हों, कितने भी व्यस्त हों, अगर कोई बात को रात को 12 बजे भी पहुंचता है, अगर कोई मिलने के लिए रुकता है तो गुस्सा होती है, लेकिन मिलने वाले को जरूर बोलते हैं, हाँ भाई बताइए कैसे हैं आप, कैसे हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हमने मतलब बहुत साधु संत देखे, हमारा भ्रमण भी रहा काफी, और हम उससे पहले भी वृंदावन आया जाया करते थे, लेकिन गुरुदेव की तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। गुरुदेव हमारे अतुलनीय हैं, और हम उनको जब पद है, हम भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि हम बात कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, हमारी धर्मपत्नी जी ने पहले ही काफी समय ले लिया और वक्त हमारे पीछे लाइन में है, तो हम सिर्फ यहीं पर अपनी बात को समाप्त करेंगे। नहीं प्रभु जी, बोलिए और बोलिए। अभी तो शुरू किया आपने, 10-15 मिनट तो बोलिए। देखिए कई उदाहरण हैं। पहली बार हम भागवतम में गए, श्याम प्रभु जी से मुलाकात हुई, संगत में रहे, तो श्याम प्रभु जी ने बोला कि देखिए जगन्नाथ जी आपको जाना है, और जगन्नाथ जी का मेरे को महत्व समझाया कि क्या महत्व होता है और क्या उसका रिजल्ट मिलता है। और उन्होंने बोला कि नहीं आपको जाना ही है। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं चलूंगा। प्लान था जाने का, मन में इच्छा थी, लेकिन परिस्थितियां विचित्र थी। दिन पास आता जाता, प्रभु जी से पूछता टिकट कहाँ से आप बताएंगे, करके हो गया। हमारा मतलब धड़कन बढ़ने लगा। मैंने कहा प्रभु जी का टिकट हो गया, और मैंने बोला था कि हम जाएंगे। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, हमने कहा गुरुदेव मेरे को जगन्नाथ जी जाना है, परिक्रमा में जाना है। ये समझो कि रात को बोला, ऐसे ही बोला, कोई उनसे फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ एक हमने व्हाट्सएप स्काइप पे मैसेज डाला। हमने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी की परिक्रमा में इस बार सम्मिलित हूँ। आप समझिए, रात को मैंने मैसेज डाला, अगले सुबह 8 बजे मैंने टिकट बुक कर ली थी। श्याम प्रभु जी से डिटेल मांगी, मैंने कहा किस में आपका टिकट कैसे है, उसी हिसाब से मेरा टिकट आने और जानो दोनों तरफ से कंफर्म। और मैं मतलब धन श्याम प्रभु जी के साथ में गए, उनके साथ में इतना उन्होंने सपोर्ट किया, हर वक्त ऐसा ध्यान रखा। मतलब हम कहते हैं ना, हमारे व्यस्त नहीं है, सब हमारे सीनियर, हमारे जो डिवोटीज हैं बहुत ही उच्च कोट के हैं। हम बहुत अपराध करते हैं क्योंकि हमसे कुछ आता ही नहीं है। रमनी श्रोमणी दीदी हम कुछ भी बोलते हैं उनसे चुपचाप सुन लेंगे, है ना। ऐसे श्याम प्रभु जी, प्राण गोविंदा प्रभु जी, सबका मैं किसका नाम लूं, सुचित्रा दीदी, सब लोग, हम सब लोगों का वर्णन करना चाहूंगा। लेकिन मैं बोलता हूँ किसी से कुछ भी बोलूं, अगर अपराध भी हो जाए ना तो कोई कुछ बोलता नहीं, सब हंस के टाल देते हैं, साइड में करते हैं। तो उनका मतलब सब लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपसे सबसे यही निवेदन करूंगा कि अगर कोई हमसे जान अनजान में, हम तो कहते हैं जान के भी अगर हम कोई अपराध करते हैं, अनजान में तो अपराध हो ही जाते हैं, तो कृपा करके हमें क्षमा करें।
मैं आपका छोटा भ्राता हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। हमें किसी तरीके का कोई हमें बुरा नहीं लगता, ना किसी तरह की कोई फीलिंग आती है। इंसान होने के नाते, माया बात होने के नाते, माया में जकड़े होने के नाते हम विभिन्न तरह के अपराध करते हैं और अज्ञानता बस बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं जिनका भाव मेरे को पता नहीं है। जैसे पहले दिन मेरे को मौका मिला था तो हमने बोला कि नहीं, गुरुदेव की महिमा का वर्णन होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम अज्ञानता बस ये शब्द भूल गए, लेकिन ये महिमा पिछले साल से चली आ रही, मेरे को पता नहीं था। रमनी दीदी ने मेरे को एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। हमने एक दिन का बोला, उन्होंने 15 दिन का प्रोग्राम मेरे को दे दिया कि लो गुणगान करो गुरुदेव का, एक दिन नहीं 15 दिन। तो बोलते ना, हमें कुछ पता नहीं है, अज्ञानता बस हम कुछ भी बोल जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सब लोगों का सहयोग वांछित है। आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि हमें सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, हमें भी दिखाएं कि भक्ति कैसे होती है। अपने साथ में एक उंगली पकड़कर पीछे पीछे रहे। हमें अभी छोटे से बच्चे हैं, अभी साल भर भी नहीं है, उंगली पकड़ के हम भी चलना सीख जाएंगे। आपके साथ रहेंगे, आपके परिवार में रहेंगे, हम सबका परिवार है। हम सब, आप सब लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद का आवांक्षी हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बस यही बात कहकर हम अपने बाकी को वाणी को विराम देता हूँ। और जो हमसे जान अनजान में जो भी गलतियां हुई, अपराध हुए, कोई भावना, किसी की भावना को हमने ठेस पहुंचाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। पाश्चाकल्पतरुस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला गुरुदेव भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय। जय जय हरे कृष्ण। प्रभु जी, देखो, यही आपकी सरलता है। आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपने समय का वो देखा कि समय कम है, तो इस चक्कर में आपने अपनी वाणी को वहीं विराम दे दिया। और अच्छा है प्रभु जी, आप श्याम प्रभु के साथ मतलब जगन्नाथ जी की यात्रा करी आपने। इसी तरीके से श्याम प्रभु के साथ जुड़े रहिए। श्याम प्रभु गुरुदेव के बहुत प्रिय हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, शाम प्रभु मैंने ना अपने मुख से कई बार मेरे को कान पकड़ के जोड़े मैंने रखिए, कई बार सुना है ये बात। मेरे को दूर मत फेंकिए प्लीज, मेरे को जोड़े रखिए। हम तो यही प्रार्थना सबसे कहते हैं, सभी वैष्णवों से। देखिए, हमसे बड़े, हम सबसे छोटे हैं यहाँ पर, हमसे सब ज्यादा ज्ञानी हैं, सब में भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। हम तो अभी उथल पुथल करके थोड़ी देर में ऊपर, थोड़ी देर में नीचे होते हैं, तो यही अपराध करते हैं। इसी के लिए हम क्षमा मांगते हैं और हमें अपना समझकर अपने साथ लगा के रखिएगा, हमें बांध के रखिए, मेरी उंगली छोड़िएगा नहीं, बस यही निवेदन है मेरा। बिल्कुल प्रभु जी, मतलब गुरुदेव ने आपको पकड़ लिया तो आप कभी छोड़ेंगे तो नहीं वो। गुरुदेव की तो असीम कृपा है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव जहाँ पे गुरुदेव की कृपा है, ये समझिए कि मतलब वहाँ पे सबकी कृपा है। वो कहते हैं जो गुरु का प्यारा वो सबदा प्यारा। तो आप गुरु के प्यारे हो गए हो तो आप सभी वैष्णव के भी प्यारे हो चुके हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु जी। बस आपको एफर्ट्स डालनी है कि आप श्याम प्रभु का हाथ मत छोड़िए। श्याम प्रभु के साथ रहिए, वो गुरुदेव के बहुत प्रिय हैं, वो आपको अपने साथ साथ आपको भी तरा देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब हम कुंजेश्वरी दीदी से प्रार्थना करते हैं। कुंजेश्वरी दीदी, हरे कृष्णा, आप आइए और अपनी अनुभूतियों को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आप अच्छा, अपनी बिना वीडियो ऑन कर लीजिए दीदी जी। वीडियो ऑन ना करे तो चलेगा? सबको पता लग जाएगा ना दीदी आप कौन है, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है सबको बताना। वीडियो कैसे ऑन होगा? अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ, शुरू करें? हाँ जी दीदी, बिल्कुल। अच्छा, 10 मिनट ना? 20 मिनट दीदी। 20 मिनट? अच्छा ठीक है। वैसे तो 20 मिनट भी आपके लिए कम है, मैं जानता हूँ। 1 घंटा, 1 घंटा। ओह श्याम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो आप मेरे को ब्लेस करें, मैं 10 मिनट बोल पाऊं। हरे कृष्णा।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत महाराज इति नाम्नि वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गे निष्प्रेष्ठितं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधा एकनिष्ठं रसायन कथामृतं संकीर्तनमानन्दधाम गोस्वामी नाम वनं नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नाम्नि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे मध्य गुरु पात्रों शैला गुरुदेव भक्ति वेदांता वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनके अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनके अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी मातृवृंद स्नेह वृंद पितृवृंद सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। और मैं अपनी जीवा को थोड़ा दीदी गलती अपना हो गई। ये जो माइक है अपने पास मुंह के पास रख लें, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। अब बेटर है? हाँ जी दीदी बेटर। हाँ, गुरु की महिमा के द्वारा अपनी जीवा को शुद्ध करने का थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ। गुरु का गुरुत्व बहुत भारी है, जिसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु तत्व तो अखंड है, परंतु गुरु अखंड नहीं है। गुरु आश्रय विग्रह है, जो राधा की कृपा के द्वारा इस धरा पर अवतरित होते हैं हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। वास्तव में गुरु है कौन? गुरु वो ही हो सकता है जो इस धरा पर उस गोलोक के बारे में भी जानता है और इस धरा के बारे में भी जानता है, जो एक जीव का कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित होता है। और हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर चित्त बल को बढ़ाने के लिए, अपने गोलोक धाम में वापस ले जाने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। गुरु कैसे लेके जाता है जीव को, बस इसी के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। गुरु की महिमा तो वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है पर फिर अभिमान, भोक्ता का अभिमान दे दिया कि मैं, और देहात्म बुद्धि प्रदान की, जिससे क्या हुआ कि हमें भोक्ता का अभिमान आने के कारण मैं मेरे के संसार के चक्कर में हम फंस गए। परंतु गुरु जो होते हैं गुरु जब इस धरा पर आते हैं और जो हमारा शुद्ध अभिमान है, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, उस अभिमान को जागृत करते हैं। उसके लिए हमें चित बल देते हैं। चित बल कैसे देते हैं? जब हम आते हैं तो हम तो भूल गए, हमें ये गुरुदेव बताए थे तुम्हें गोलोक जाना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें गोलोक जाना है, पर जाना कैसे है? उसकी चाबी, क्योंकि हमारे पास तो चाबी है नहीं, वो गुम हो गई है। वो चाबी किसके पास है? वो गुरुदेव के पास है। वो गुरुदेव हमें उस चाबी के 9 दरवाजों से गुजार कर उस प्रेम को प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम कृष्ण के नित्य परिकर में शामिल होकर अपने गोलोक धाम में पहुंचते हैं। जीव उनके दर्शन करता है, सबसे पहले जो अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके अंदर क्या होता है? क्लेश अग्नि खत्म होने लगते हैं, शुभ लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। यानी उसकी जो भी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं उसके हृदय में होती हैं, वो धीरे धीरे जैसे पूरी होने लगती हैं। क्योंकि गुरुदेव को पता है कि जीव किस इच्छा को लेके मेरे पास आ रहा है, उसे क्या चाहिए, जिसके देने के बाद वो मेरी तरफ आएगा। पहले क्या होता है? उसको लोभ,
यही लोभ होता है। शिष्य गुरु की तरफ क्यों आकर्षित होता है? चिंतामणि के पास जाने से जो इच्छा होती है वो तुरंत पूरी हो जाती है, वही गुरुदेव के साथ है और वही जीव को आकर्षित करते हैं। इसी तरह से येन केन प्रकरण प्यार से, शासन से, लोभ से वो शिष्य को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब जीव आता है तो आता वो आदर के भाव से है कि ये गुरु हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी तरह से उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं होती। परंतु धीरे धीरे जब जैसे आता है उसके जो अंदर संदेह होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचते हैं ना, बोलते हैं हम, जैसे हमारे अंदर कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व हो जाता है। यानी उसके आने से पहले उसकी मन की वृत्ति को समझकर गुरुदेव उसका समस्या का समाधान कर देते हैं, ताकि ये जीव मुझे छोड़ के जाए ना। अब जैसे जीव को लगता है वो उसकी तरफ और आकर्षित होने लगता है, धीरे धीरे जब उसकी समस्याएं समाधान होने लगती हैं, क्योंकि इस जड़ संसार में क्या है, कर्मबद्ध जीव क्या होता है, फल की तरफ आकर्षित होकर ही उस कार्य को करने के लिए तैयार होता है, नहीं तो वो तैयार ही नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है। उसे कुछ फल की आसक्ति होगी तभी वो उस कार्य को करने में घुसेगा। जैसे उसे पता चलता है, अब गुरुदेव धीरे धीरे खींचते हैं, धीरे धीरे उसको कथा अपने पास खींचते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी होने लगती है, तो गुरु की क्या होता है, गुरु मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, मैं गुरु के पास जाऊंगा। अब उस लोभ से थोड़ी थोड़ी वो कथा का उन्हें रस देने लगते हैं। सबसे पहले आती है श्रद्धा, जो लौकिक श्रद्धा जो होती है, जो रिस्पेक्ट की है, जो फल की इच्छा से लौकिक श्रद्धा के थ्रू वो गुरुदेव के पास जाते हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं, उस लौकिक श्रद्धा को धीरे धीरे हरि कथा के द्वारा परमार्थिक श्रद्धा में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जैसे गुरु के पास बैठते हैं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कथा का रस देते हैं, क्योंकि कथा जो है चिन्ह है, नित्य है, और नित्य जो हमेशा विद्यमान रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। जड़ चीज में अगर एक अंधेरे कमरे में रोशनी के किरण पहुंच के वो प्रकाश करेगी, अंधेरा नहीं करेगी, बल्कि अंधेरे को नष्ट करेगी। अब जब हरि कथा रूपी अमृत, वो भी उत्तम उत्तम महाभागवत के द्वारा जो हृदय में समाया जा रहा है, वो कभी नष्ट ही नहीं होगा, तो वो तो अपनी जगह बनाएगा और धीरे धीरे उनके अनर्थ को खत्म करेगा। धीरे धीरे उनको क्या होता है, कथा में रुचि आने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, श्रद्धा आने के बाद फिर गुरुदेव उनको संग प्रदान करते हैं। साधु संग दिया, साधु संग से क्या होता है, हरि कथा में रुचि होना। जो बद्धजीव जल्दी से उसको सुनना स्वीकार नहीं करता, उन्हें तरह तरह से लोभ देकर उस हरि कथा में बैठो, हरि कथा सुनो, हरि कथा सुनो। गुरुदेव का प्रयास क्यों रहता है, क्योंकि हरि कथा अपने आप में ही एक सॉल्यूशन है भगवान में भक्ति करने का, गुरु के चरणों में अपनी निष्ठा प्रगाढ़ करने का। क्योंकि हरि कथा नित्य है, जो हमेशा विद्यमान अनादि काल से चली आ रही है, जिसको कभी नष्ट ही नहीं होगी। वो चीज अगर हमारे अंदर डाली जा रही है, पर हमारे अंदर तो इतने अनर्थ है, जो भी डालते हैं एक उल्टी की तरह बाहर आ जाता है, समा ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे पता नहीं क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हमें समझ ही नहीं आता। क्योंकि बहुत हम लोग पहले गुरुदेव की कथा समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हम वो धारण कर ही नहीं पा रहे थे, वो हमें इतना वैशिष्ट अधिकार था ही नहीं कि उन अमृत भरे शब्दों को अपने हृदय में धारण कर सके। एक एक शब्द जैसे ही पहुंचता था वैसे ही उलट के बाहर आ जाता था कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता। पर उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा, सुनो सुनो बार बार, क्योंकि तुम्हारा इलाज ही यही है। पर धीरे धीरे कथा का कोई एक कण हमारे हृदय में समाया, उसने अपनी जगह बनाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे वो हमारे अंदर प्रगाढ़ होता चला गया और हमें उसमें कथा में रुचि आने लगी। और गुरुदेव ने वो जो हमारे गुरु और बीच में जो कथा के बीच में जो शब्द जो हमें समझ नहीं आ रहे थे, उसके साथ हमारा धीरे धीरे संबंध करने लगे। भजन जैसे साधु संग हमें दिया, उसके बाद उन्होंने हमारे साथ क्या किया, भजन प्रक्रिया। फिर धीरे धीरे तुम आओ मेरे पास, जैसे मैं करता हूँ तुम मंगल आरती करो, भजन करो, हरि नाम करो, और ये सारी क्रियाएं करो। इससे क्या होगा, भजन की प्रक्रिया करने से क्या होगा, हमें गुरु के प्रति एक संबंध की एक अनुभूति होगी कि गुरुदेव, हमारे गुरुदेव किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से अर्ली मॉर्निंग में उठ के भजन करते हैं, 2 बजे उठ के हरि नाम करना, अपनी डेली परिचर्या का किस तरह से रेगुलर पालन कर रहे हैं। उसमें तिल मात्र भी कहीं भी इस चीज का कोई संशय नहीं है कि वो उसको छोड़े, दिन हो या रात हो या कहीं भी जाए उसका पालन करते हैं। ये दृढ़ता प्रदान करते हैं, जो शिष्य को सिखाते हैं कि हमें इस तरह से नियम का पालन करना चाहिए। तो ये कब होगा, जब भजन क्रिया में हम प्रवेश करेंगे। भजन क्रिया में जब प्रवेश आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, भजन अपने आप में नित्य है। जब अंदर जड़ चीज के साथ लड़ेगा तो उसकी शक्ति बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिक हमारे अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। अनर्थ निवृत्ति होने के क्या बात होता है, फिर कलेश अग्नि, जो कि जितने हमारे कष्ट हैं सब दूर होने लगते हैं। शुभ लक्षण, यानी कि हमें अच्छी अच्छी चीजें चारों तरफ नजर आने लगती हैं। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स क्या होती है, अगर खुद आपका ऑरा पॉजिटिव है, ऑब्वियसली जो तुम्हारे ऑरे में आएगा वो भी पॉजिटिविटी ही फील करेगा, और तुम्हारे प्रति वो हमेशा स्माइल पास करेगा, उसे लगेगा कि मैं इसके साथ रहूं। वही चीज गुरुदेव हमें देते हैं, और हमें लगता है कि बस हम गुरुदेव के साथ रहें और हमेशा उनका संग करते हैं, क्योंकि वो हमें एक ऐसी चीज दे रहे हैं जिसके हम अधिकारी नहीं है, फिर भी वो हमें दिए जा रहे हैं, पर हम अपने अधिकार और वैशिष्ट्य के अनुसार उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे लोभ दे के
अर्चन के द्वारा उस चीज को हमारे अंदर डालते हैं, जीव उसमें फिर धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगता है कि गुरुदेव, हमारे गुरुदेव मंगल आरती करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए, गुरुदेव सुबह उठ के हरि नाम करते हैं तो हमें भी हरि नाम करना चाहिए, गुरुदेव धाम यात्रा करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरुदेव के साथ जाए, क्योंकि वो हमें उतना अधिकार धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि बिना उनके दिए हुए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जितनी क्रियाएं चल रही है, श्रद्धा, भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, ये गुरु के द्वारा ही प्रदत्त है। अगर गुरुदेव हमें ना दे तो हम इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और वो कितना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि हम धारण नहीं कर पा रहे, क्योंकि उपलब्धियां तो उन्होंने सारी हमारे हृदय में डाल दी हैं, पर हम उसको ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा अधिकार और वैशिष्ट्य उतना है ही नहीं कि हम उसको धारण कर सके। और इसको धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। साधन कैसे करना पड़ेगा? अनुगत्य में करना पड़ेगा। अनुगत्य किसका होगा? सदगुरु के अनुगत्य में जब हम कार्य करेंगे तो ये क्रियाएं ऑटोमेटिकली अपने आप ही सहज रूप से होती चली जाएंगी, क्योंकि किसी कार्य को शुरू करने में कठिनाई बहुत होती है, परंतु जब जो सहज हो जाती है तो वो आराम से स्वाभाविक रूप से चलने लगती है। उसके बाद गुरुदेव जब लोभ डालते हैं, चलो ठीक है तुमने भजन क्रिया अब शुरू कर लिया, अब धीरे धीरे इनको क्या करना चाहिए, एक नियम बांधना चाहिए कि तुम्हें इतनी माला रोज करनी चाहिए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अरे कम से कम 2 माला सुबह, 2 माला शाम को करो। गुरुदेव बोलते हैं इतना नहीं, कम से कम 10 मिनट उसमें लगते हैं, 10 मिनट उसमें लगते हैं, 23 घंटे 40 मिनट तुम छोड़ दो, 10-10 मिनट माला करो। उनका तात्पर्य क्या है कि जीव किसी तरह इस हरि नाम से जुड़े, उसकी 2 नाम की संख्या पूर्वक जो माला निष्ठा है वो करके ही सोए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। अगर 2 माला का नियम वो पकड़ लेता है तो उसकी निष्ठा उसमें आने लगती है कि मेरे को कुछ नहीं, गुरुदेव ने बोला मुझे 2 माला सुबह, 2 माला शाम को करनी है। किस तरह वो खींच रहे हैं हमें, एक एक रूम की चाबी, श्रद्धा वाले रूम की चाबी, फिर भजन क्रिया की, साधु संघ की, अनर्थ निवृत्ति की, फिर निष्ठा की चाबी, कैसे कैसे हमें प्रेम की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। और हर जीव अपने अधिकार विशिष्ट के अनुसार आगे बढ़ता जा रहा है। निष्ठा के बाद फिर जब उसे आनंद आने लगता है तो माला भी बढ़ने लगती है, क्योंकि जब गुरुदेव कथा सुनाते हैं कृष्ण का पास टाइम, जिसे लीलाओं के बारे में हमें बताते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो हमें आनंद आता है। पर उस लीलाओं के साथ साथ वो तत्व को भी बड़े सुंदर भाव से शिष्य के हृदय में किस तरह घुसा देते हैं, शिष्य को पता ही नहीं चलता, और बड़े प्रेम से उस चीज को धारण करके वो आगे बढ़ता है। और उसे बड़ा आनंद आता है कि तत्व में अच्छा ऐसे है ये राधा कृष्ण की लीला, कितनी गहरी गहरी गूढ़ लीलाएं गुरुदेव हमारे सामने इतने आराम से बोल देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर बात है। नहीं तो जड़ विचार आने में हमें तनिक भी संदेह नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से गुरुदेव हमें लीलाएं सुनाते हैं, जड़ विचार हमारे अंदर सबसे पहले आता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम जड़ संसार के अकॉर्डिंग ही उस चीज को अपने हृदय में धारण कर पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि सबसे पहले हम कंपैरिजन किससे करते हैं? जड़ संसार की स्थिति से, कि अच्छा इसमें ऐसे होता है तो इसमें ऐसे, तो ये कैसे हो सकता है? वो चिन्मय है। तो वो चीज भी हमारे अंदर वो अधिकार प्रदान करते हैं कि तुम इसको किस तरह से धारण करो, जाके तुम्हारे हृदय में ये विचार आए नहीं, और वो स्थिति भी वो हमें देते हैं। निष्ठा के बाद फिर ये देते, रुचि आने लगती है तो बस जी फिर नाम करने लगता है। फिर तो गुरुदेव बोले या नहीं बोले, नाम करना ही करना है। हम हरि नाम अपना फिर रेगुलर करते हैं। रेगुलर करने के बाद क्योंकि फिर भजन में जब रुचि आने लगती है, अब यहाँ पे रुचि के बाद जब आसक्ति आती है, आसक्ति का मीनिंग क्या है? आसक्ति यानी इस जड़ संसार से वैराग्य भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, हरि कथा का भी श्रवण कर रहे हैं, पर उस आसक्ति का त्याग नहीं कर पा रहे। तो जब गुरुदेव में हमारी आसक्ति कब होगी? जब हमारा उससे कुछ संबंध क्रिएट होगा। संबंध कैसे क्रिएट होगा? जब हम उनके प्रति, उनके साथ, उनके अनुगत्य में भजन करेंगे, जब हमें कुछ लोभ होगा, आश्रय लेकर जब हम भजन करेंगे, जब हमें उनके प्रति कभी विरह होगा। विरह कब होता है? विरह भी उसी से होता है जिससे हमारा संबंध होता है। विरह भी उसी से होगा जिससे हमारे, जब तो कहते हैं गुरुदेव, आश्रय लइया भजे ताते कृष्णा नाही तजे और समरे अकारण। जो आश्रय लेकर भजन करते हैं, जो संबंध बना के भजन करते हैं, उनको भगवान कभी नहीं त्यागते, उनको गुरुदेव कभी नहीं त्यागते। और ये गुरुदेव को पता है कि कौन शिष्य किस अधिकार से इस परमार्थिक जगत में आगे बढ़ा है। कैसे एक शिष्य को लाके गुरुदेव श्रद्धा में लाके किस तरह परमार्थिक श्रद्धा की तरफ लेके जा रहे हैं, और शिष्य बड़े आसानी से, आराम से, बड़े प्रेम से, क्योंकि वो उनमें बल है, वो चित्त बल है, वो ही कर सकते हैं। ये कौन है? ये उत्तम महाभागवत जो इस धरा पर क्या होते हैं, अपने स्वरूप को संवरण करके मध्यम के रूप में इस अधिकार में स्थित होते हैं इस जगत में, ताकि वो जड़ जीव को, बद्ध जीव को उसके साथ लोक बंधु प्रीति करके उसके साथ संबंध क्रिएट कर सके। क्योंकि हम भगवान से संबंध नहीं बना सकते। देवकी वासुदेव जी ने कृष्ण को भगवान ही समझा था, तो इसलिए उनके साथ प्रेम प्रीति संबंध हो ही नहीं सका।
पर यशोदा और नंद बाबा ने उनका क्या था, उन्होंने पुत्र वत उनके साथ लोक सत बंधुवत प्रीति क्या होती है, जिससे हम अपने दुख दर्द अपना संबंध एक नॉर्मल इंसान की तरह क्रिएट कर सकें। गुरुदेव हमारे साथ, तो हम क्यों नहीं समझ पाते कि वो नित्य नहीं है? क्यों? क्योंकि हम क्या है, हमारे अनर्थ अपराध इतने ज्यादा हैं, सामने हमारे सामने चिन्ह में चीज खड़ी है, पर वो हमारे साथ लोक सद्बंधुवत प्रीति हम करना चाह रहे हैं तो भी नहीं कर, कहीं ना कहीं जड़ संदेह आ जाता है कि ये नित्य है, ये परिकर है। आप ये सोचिए, जब दाम बंधन लीला में जो कृष्ण जी हैं, जो नंद बाबा की खड़ाऊ उठा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, चल भी नहीं रहे हैं, और नारद जी देखे ये कैसे ऐसी लीला हो सकती है, जो कि वो परब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान है, वो षडैश्वर्य श्यामी है, तब भी इन लोग जब इनको संदेह हो सकता है, तो हम जड़ जीवों तो किसी चीज कहाँ सोच कर ला सकते हैं? हम इस सोच से कैसे पीछे हट सकते हैं? हम बुद्धि पूर्वक इस चीज को धारण करते हैं जबरदस्ती, नहीं गुरुदेव नित्य हैं, गुरुदेव नित्य हैं, पर इस चीज को धारण कब कर पाएंगे? जब उनके अनुगत्य में हम भजन करेंगे, धीरे धीरे जैसे हमारे साधन बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हम उनके अनुगत्य में उनके भावों का स्मरण कर पाएंगे। गुरु की सेवा ये नहीं है कि हम गुरु के लिए खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गुरु के भावों को समझना, गुरु किस रीति से भजन कर रहे हैं, उस भजन प्रणाली को अपने हृदय में धारण करके उसका आचरण करना। गुरु किस तरह से भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं, गुरु किस तरह से वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, उनका तिल मात्र अंश भी अगर हमारे अंदर आएगा तो वो भाव हमारे अंदर दिखेगा, और जिस शिष्य में दिखता है वो पता चल जाता है कि गुरुदेव की ये किस गुरुदेव के शिष्य हैं, क्योंकि वो भाव अंदर आना। भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके अंदर अपने गुरु के भाव थे, तो साक्षात प्रदर्शित होता था कि ये भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी जी के शिष्य हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति सच्चिदानंद भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर, इन्होंने क्या थे, ये सब साक्षात अपने गुरु के भाव में आप समाये हुए थे, आत्मसम थे। तभी कहते हैं कि हम गुरु का दर्शन और देखना, ये क्या चीज है? हम खाली गुरु को देखने जाते हैं, देखने का क्या मीनिंग है? गुरुदेव बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, कोई दूर से देख रहा है, कोई पास से देख रहा है, इससे गुरु का देखने से दर्शन नहीं होता। वो तो खाली हमारी सुकृति मास्ट पुष्ट होती है, पुष्ट होने के बाद कब सुकृति होती है, वो कब पुष्ट होगी? पर ये है कि हाँ, गुरु के दर्शन करने से हमारा सुकृति का संस्कार पड़ जाता है, वो कब पुष्ट होगा कुछ नहीं पता। पर दर्शन क्या चीज है? कितने गुरु के गुणों को तुमने अपने अंदर धारण किया है, कितना तुम उसका आचरण करते हो, उसके जितने गुणों को जितनी मात्रा में धारण करके आत्मसम किया है, वो एक्चुअल में गुरु का दर्शन है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी है, रघुनाथ निवासाचार्य जी हैं, माधवेंद्रपुरी हैं, ईश्वरपुरी हैं, इन्होंने अपने गुरुओं को आत्मसम किया है, अपने गुरु के भावों में प्रवेश करके उनको प्रदर्शित करके अपने गुरु को प्रसन्न किया है। क्योंकि गुरु ही बनाता है, अपना शिष्य नहीं बनाता। गुरु अपने सारे भावों को शिष्य के अंदर प्रदर्शित करता है, जैसे गुरु है वैसा ही शिष्य हो जाता है। सरस्वती प्रभुपाद जी भी वो कहते हैं कि मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरु ही बनाता हूँ। क्यों? वो हमेशा यही कहते थे कि जो शिष्य के रूप में मेरे पास आता है वो गुरुदेव की ही कृपा है, ताकि वो मेरे सामने आए और मैं उनके सामने जो भजन करूं, वो चाहते हैं गुरुदेव, मेरे गुरुदेव भजन चाहते हैं मुझसे कि मैं ठीक से भजन कर सकूं, इसलिए वो गुरु के रूप में मेरे पास आए हैं और मैं इनके अनुगत्य में भजन करके अपने आप को थोड़ा सा कृतार्थ कर सकूं। तो जब तक ये विचार गुरु के भावों को समझकर हम अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, उनके भावों को नहीं समझेंगे, तब तक हम गुरु के भाव को प्रवेश कर ही नहीं सकते। और उनका अनुगत्य का मीनिंग ये है कि तिल मात्र उनके भावों को अपने अंदर लेके उसको आत्मसात करना, और ये साधन करने से ही होगा। क्योंकि गुरुदेव ने अभी कुछ दिन पहले कथा में बताया था कि भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो रमण मंजरी थे, बहुत ही कम शिष्य जान पाए थे कि वो रमण मंजरी हैं। वो कौन से संस्कार, अनंत कोटि जन्मों के संस्कार होते हैं, वही जान पाते हैं कि नित्य परिकर है। हर जीव नहीं जान पाता कि नित्य परिकर है, पर यह कि जो बोल रहे हैं नित्य परिकर उनको पता है, पर जिनको बोल रहे हैं वो बद्ध जीव है, वो बुद्धिपूर्वक उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। अब ये भी पता है कि भक्ति की जो क्लास होती है उसमें किसी स्टैंडर्ड का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, उसमें नर्सरी से लेकर पीएचडी तक सारे भक्त विद्यमान होते हैं उस क्लास में, क्योंकि भक्ति की एक ही क्लास होती है और हर शिष्य अपने अधिकार और वैशिष्ट्य के अनुसार उस चीज को धारण करता है। और वहां पर वही चीज अगर एक छोटा कनिष्ठ शिष्य उत्तम भागवत को देख के उसके अकॉर्डिंग नकल करता है तो उसका पतन निश्चित है कि अगर वो उज्जवल नीलमणि पढ़ रहा है और मैं भी उज्जवल नील पढ़ूं तो उसका तो पतन निश्चित होगा, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा और जो उस लेवल पे हैं वो उस चीज का आनंद ले रहे हैं।
तो इसलिए अनुगत्य में हमें भजन करना बहुत जरूरी है। हमें अपनी, क्योंकि मन रूपी रथ पर चलकर अगर हम भजन करेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमारा पतन निश्चित है। तो हमें गुरु रूपी पथ पर तो चलना ही पड़ेगा। गुरु रूपी रथ पे सवार होकर अंधे भी होकर हम भगेंगे तो भी हमारा गिरना संभव नहीं है। गुरु हर स्थिति में, हर समस्या से, हर चीज से हमारा पालन कर रहे हैं। इस जगत में जो भी समस्याएं हैं वो कभी नहीं आएंगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही संवरण होती जा रही हैं। पर उन चीज को ध्यान देने की बजाय गुरु जो कथा कर रहे हैं, जो चीज देना चाह रहे हैं, उस चीज को लेने का प्रयास करो। क्योंकि रसिक गुरु जैसे हमारे गुरुदेव हैं, कृष्ण रस भाविता मति पूतो अभी लभ्यते, यानी इस तरह के जो रसिक हैं, इनके चरण पकड़ लिए जाएं तो पकड़े रखो। क्योंकि ऐसी सुकृतियां करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हम सुकृतियां इकट्ठी कर लेंगे तो भी हमें ऐसे चरण नहीं मिलेंगे। ये इस चीज को ऐसी अनुभूति करने का गुरुदेव हमें अनुभव दें, ताकि उनकी जो निष्ठा, हमारे जो निष्ठा बैकबोन जो भक्ति की है, उनके चरणों में जो हमारी निष्ठा हो, उसके प्रति जो हमारे अनुभूति हो वो हमें प्रदान करें। जो ग्रंथ गुरुदेव ने लिखे हैं, जो उन्होंने अप्राकृतिक शब्द जो उनके अंदर दिए हैं, उनको जब हम पढ़ें तो उनकी अनुभूति हमारे हृदय में हो, ताकि जो हम उस अनुभूति के साथ ही हम उनका संग कर सकें। ज्ञान नहीं चाहिए, संग का मीनिंग ये नहीं है कि हम गुरुदेव के साथ रह रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, करने। उनकी मन की वृत्ति किधर जा रही है, मन की वृत्ति की तरफ अगर हम अपना मन मोड़ेंगे तो वो संग कहलाता है। संग ये नहीं है कि साथ चलने से होता है। मन, सेवा की वृत्ति, सेवा और सेवा की वृत्ति में भी बहुत अंतर है। सेवा तो कहीं भी मिल जाती है, झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाती है, मंदिर में भी सेवा मिल जाएगी, बट सेवा की वृत्ति क्या है? सेवा की वृत्ति की तुम्हारे अंदर की, तुम भगवान का भजन करना चाहते हो, गुरु की सेवा करना चाहते हो, वो वाली चीजें। जैसे प्रहलाद जी असुर प्रकृति में पैदा हुए थे, पर उनका भाव क्या था? भगवान के भक्त थे वो। वृत्तासुर जी क्या थे? वृत्तासुर भी वही थे कि असुर थे, पर उनकी प्रार्थनाएं किस तरह, उनकी वृत्ति किस तरह की थी? तो सेवा वृत्ति वास्तव में तुम्हारे अपने स्वरूप में स्थित होने की स्थिति है, जिसमें तुम एक्चुअल में जो सेवा करते हो वो तुम्हारी रियल सेवा कहलाती है, और ये हमेशा तुम्हें परमार्थ की तरफ लेके जाती है, कभी तुम्हें तुम्हारे पद से गिराती नहीं है। गुरु के बारे में तो गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं, गुरुदेव की श्रेष्ठ वंदना क्या है? गुरुदेव क्या चाहते हैं? गुरुदेव ये चाहते हैं कि तुम अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, ताकि मैं उसे सुमन बना सकूं। क्योंकि सुमन जब तक नहीं होगा तब तक हम अपने मन रूपी रथ पर भ्रमर की तरह घूमते रहेंगे और जगह जगह गिरते पड़ते रहेंगे, और गुरुदेव के पास भी आते रहेंगे, पर कभी एकाग्र नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव हमें बहुत प्रयास करते हैं, पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस चीज में थोड़ा सा आविष्ट होकर उस चीज को समझें। और गुरुदेव हमें, और ये तभी हुआ जा सकता है जब गुरुदेव हमें खुद अपनी अनुभूति देंगे, और ये केवल गुरु कृपा के द्वारा ही हो सकता है। और गुरु कृपा भी, भक्ति भी भक्त की अनुगामी होकर हमारे पास आती है, क्योंकि हम डायरेक्ट भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, ये कृपा से ही प्राप्त होती है, और भक्ति कृपा से ही है। गुरु कृपा ही केवलम है, गुरु कृपा के बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु कृपा के द्वारा ही हम जो कार्य कर सकते हैं वो गुरु कृपा से ही कर सकते हैं। आज हम जो बोल रहे हैं वो गुरु कृपा के द्वारा ही बोल रहे हैं। गुरु की तो कृपा, इतने सरलता का तो कोई परिमाण ही नहीं है गुरु के, उसमें गुरु इतने सरल हैं, इतने से सबको ही पता है कि गुरु कितने सरल हैं। इतने सरल हैं कि वो कुछ भी, एक बार मथुरा में एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, उनको चावल खाने का, जैसे मैंने सुना है हरि गुरु वैष्णव से, तो गुरुदेव ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना है और यहीं रहकर ही भजन करना है। तो गुरु आज्ञा पालने बिना विचारने, तो उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। हाँ जी, आपका ना नेट नहीं आ रहा था तो ये बात पूरी सुनाई नहीं पड़ रही, चावल वाली। अच्छा अब आ रही है? हाँ जी। एक बार भक्ति, हाँ, ये मथुरा मठ की बात है। गुरुदेव ने बताया था कि एक बार जब मथुरा मठ में थे तो इनका स्वास्थ्य जैसे ठीक नहीं रहता था। चावल, जैसे बंगाली लोग चावल बहुत खाते हैं, तो चावल मिलना, जैसे द्वादशी के दिन ही खिचड़ी मिला करती थी, तो बहुत उत्सुक रहते थे। तो रोटी खा के या कुछ भी होकर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। एक बार भक्ति विद्याधर वामन गोस्वामी महाराज जी मठ में पधारे, तो जब मठ में आए थे तो उन्होंने अपने गुरुदेव से, गुरुदेव मेरा यहाँ का जलवायु जो है मेरे स्वास्थ्य को सूट नहीं कर रहा है, तो आप मुझे नवदीप ले चलो। नवदीप, पर गुरुदेव ने बोला कि नहीं, तुम्हें यहीं रहकर ही भजन करना है और इनके अनुगत्य में ही करना है। तो गुरुदेव ने वो किया, कहने गुरु आज्ञा पालने बिना विचारने। तो यहाँ पे यही है कि गुरुदेव की सरलता तो इतनी है कि इसका तो
बयान करा ही नहीं जा सकता, पर उन जैसा सरल बनने का प्रयास करने के लिए हम उनसे प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि उनकी सरलता के गुण का अगर छीटा मोटा भी हमारे हृदय के, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आ जाए, तो शायद हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। गुरुदेव जितना भर भर के दे रहे हैं, जितनी उपलब्धियां हमें दे रहे हैं, हम अपने अधिकार वैशिष्ट के अनुसार उतना ही धारण कर पा रहे हैं। हर शिष्य को वो दे रहे हैं और हर शिष्य धारण कर रहा है। अब जैसे कि मान लो 50 मटके अलग अलग साइज के हैं, तो सूर्य की जो छवि है उसमें अलग अलग ही नजर आएगी। किसी बड़े मटके में बड़ी नजर आएगी, छोटे में छोटी नजर आएगी, पर छवि सब में पड़ रही है। और वो जितना उतनी पात्रता देते हैं जितना जीव उसको धारण करने के योग्य है। अगर उसे ज्यादा देंगे तो ज्यादा उल्टियां करेगा और उसका फिर उतने से भी जाएगा। इसलिए जितना थोड़ा 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 करके टेस्ट दे रहे हैं ताकि उसके अंदर वो लोभ हो। जब लोभ होगा तो फिर लोभ एक बार आ गया तो वो फिर गुरुदेव को नहीं छोड़ेगा, कि गुरुदेव किससे तो फिर वो उसको छोड़ किसी हालत में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, या वो गुरुदेव को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। तो गुरुदेव वही चीज हमें दे रहे हैं, वही चीज उसको हम कैसे धारण करेंगे, गुरुदेव पात्रता भी वही देंगे, और किस तरह से हम उसमें आगे बढ़ेंगे वो भी हमें यही रास्ता दिखाएंगे। पर हमने एक बार गुरुदेव के चरण पकड़ लिए हैं, हरि गुरु वैष्णव की, कि उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हर पल हर क्षण वो हमारे हृदय में विद्यमान रह के अपनी कथाओं को जो श्रवण कराते हैं उनको हम आत्मसम कर सकें, और उनके प्रति उन जो कथा वो जो हमें सुना रहे उसकी अनुभूति हमारे हृदय में दे। जो अनुभूति क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, अनुभूति गुरुदेव ही दे सकते हैं। अब गुरुदेव की जो अनुभूति जो होगी वो ही हमें परमात्मा की तरफ ले जाके गुरुदेव के भावों से आत्मसात कर सकेगी। और नहीं तो फिर हमारा इस जगत में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। प्रयास बस हर समय यही आप लोगों से, हरि गुरु वैष्णव से, शिष्य गुरु, मेरे जो इतना बड़ा सुंदर परिवार है मेरे गुरु बहन भाइयों का, उन सबको चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। और सबसे पहले तो मेरी जो पथ प्रदर्शक गुरु सुचित्रा दासी, उनकी तो मैं हमेशा ही कृतार्थ रहूंगी कि अगर वो नहीं आती तो शायद मैं आज यहाँ कैसे पहुंच पाती मुझे नहीं पता। और मैं उनसे एक चीज की भी, और उन्होंने मेरा एक संशय भी बहुत बड़ा दूर किया जो मैं आज सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। सुचित्रा दासी ने एक बार मेरे को एक सेवा बोली थी कि गुरुदेव के लिए जैकेट लानी है। अब मैं जैकेट तो ले आई, अब मेरे को ये नहीं पता था कि मुझे सुचित्रा दासी को देनी चाहिए थी ताकि सुचित्रा दासी फिर गुरुदेव को दें। पर मैंने क्या किया, मैं बद्ध जीव हूँ भी, मैं गुलाई हूँ, मैं ही दूंगी। जैसे एक अहंकार होता है ना कि हाँ मैं ही दूंगी, तो मैंने दे दी। मेरे को मन में ये विचार भी नहीं आया कि मेरे को सुचित्रा दासी को देनी चाहिए थी, नहीं थी। पर उन्होंने मेरे को इस चीज को समझाया, उसने मेरा इस मार्ग से संशोधन करके मेरे को उस चीज के बारे में बताया जो परमात्मा के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने उस चीज को तोड़ के मेरे को इस संशय को दूर किया। आज मैं उसको इस चीज के लिए बड़ी कृतार्थ मानती हूँ कि अगर वो चीज मेरे को क्लियर नहीं करती तो शायद मेरे को क्लियर कभी होती भी नहीं। तो क्योंकि अनुगत्य में सेवा अनुगत्य में ही होनी चाहिए, जैसे निवास रामचंद्रपुरी जी और निवासाचार्य जी की अनुगत्य में ही सेवा थी ना। अब वो चीज जब गुरुदेव ने कथा सुनाई तो वो चीज और क्लियर हुई। तो मैं उसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो हमारे गुरु बहन भाई हर रास्ते पे हमारा संशोधन करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। और आगे जो भी मेरे से जो भी गलती हो या कुछ भी, हरि गुरु वैष्णव के जन्म गुरु बहन भाई से मेरी ये प्रार्थना है कि वो मेरे को समझा के मेरी उस गलती का संशोधन करें और मुझे परमात्मा के रास्ते में बढ़ने में मेरी मदद करें। और यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। आपकी वाणी सुन के लगता है कि हाँ, जिसकी बात आपने करी ना कि गुरु के भावों शिष्य के अंदर नजर आते हैं, तो वो आपके अंदर भी नजर आ रहे हैं। पता लग रहा है कि आप गुरुदेव के लेक्चर्स को कितने ध्यान से सुनते हैं और कितनी कोशिश करते हैं, कितने प्रयास करते हैं उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए। बड़ा अच्छा लगा। और ये पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला ना कि मन रूपी रथ पे नहीं, गुरु रूपी रथ पे हमको चलना चाहिए। तो वाकई में ये भाव जब हमारे हृदय में आएंगे कि हाँ, गुरु रूपी जो रथ है उस पे हमको आरूढ़ होना है, उस पे हमको चलना है। और जो बात आपने बोली ना सेवा वृत्ति की, ये बात सच है। सेवा हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, जो अधिकार पे है वो वैसे ही सेवा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वास्तविक सेवा क्या है? वास्तविक सेवा वही है जो हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। कैसी सेवा? जो अपने गुरु का मनोभिष्ट जान के जो सेवा होती है वो वास्तविक सेवा है। लेकिन ये सेवा होगी कैसे? जैसे गुरुदेव बताते हैं, उन्होंने 40 साल तक क्या किया? सिर्फ भजन किया। तब जाके उनको पता लगा कि हाँ, सेवा होती क्या है, सेवा वृत्ति है क्या वस्तु। गुरुदेव वहां पे थे, क्या कहते हैं, भुज में। तो भुज में उन्होंने एक बात बोली, खासकर मेरे लिए, मतलब ये बाकी सबके लिए, मेरे लिए है।
कि कुछ शिष्य होते हैं जो मेरे चरण दबाने के लिए आते हैं रूम में कि गुरुदेव हम आपके चरण दबा देते हैं। तो वो चरण दबाते हैं तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मैं आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ कि कब ये जाए तो मैं सो हाँ, एक क्वेश्चन और है। ये आपने बोला ना, एक बार नारायण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के ना एक शिष्य पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके गुरु सदगुरु है। तब उन्होंने कैसे सदगुरु है, तब उन्होंने बोला कि इसकी उपलब्धि तो प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर परिवार से सारे संबंध तोड़ के, सारी आसक्ति को छोड़ के मठ में आना पड़ेगा और 50-60 साल मठ में रहकर गुरु वैष्णव की सेवा करके निष्काम भाव से करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे गुरु सदगुरु है। वाक्य में यही तो गुरुदेव भुज में भी बता रहे थे कि जब तक आप 30-40 साल तक भजन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि सेवा वस्तु क्या है। अभी हम बोलते हैं कि हाँ गुरुदेव आपको हमसे बहुत प्रेम है, मतलब हमको आपसे बहुत प्रेम है, तो गुरुदेव कहते हैं अगर प्रेम है तो तुम मुझे छोड़ के क्यों जाते हो, ये तो कोई प्रेम का लक्षण नहीं हुआ। तो उस चीज को समझना, गुरु के भावों को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन कि वो गुरुदेव किस अवस्था में क्या बात कह रहे हैं, इसको समझने के लिए ना वाकई में उनकी मनोभिष्ट सेवा को जानना ही पड़ेगा। और वो भी कैसे होगा, किसी वैष्णव के अनुगत्य में जो उनके प्रिय होंगे, डायरेक्ट उनसे भी नहीं हो पाएगा, जो उनके प्रियजन है ना, शिष्य, प्रियजन शिष्यों के पीछे लग जाओ, वही तभी कल्याण होगा। और ये बात भी बहुत अच्छी बोली, मतलब वो इसी में क्लियर हो गया जो आपने बोला गुरु का दर्शन। गुरु का दर्शन भी सिर्फ कानों से होता है, मतलब आंखों से नहीं। आप वैसे तो हम दर्शन करते हैं, दर्शन से हमको मतलब वो कहते हैं ना, दर्शन है पवित्र करे यही तुम्हार गुण। तो जो आंखों से दर्शन करते हैं वो विफल नहीं होते, उससे भी हम पवित्र तो होते हैं, लेकिन वास्तविक दर्शन क्या है, वास्तविक दर्शन वही जिस भाव में गुरुदेव हैं उसको समझना, वही वाक्य में उनके दर्शन है। तो बड़ा अच्छा लगा दीदी आपके मुख से सुनकर। तो ऐसा लगा कि 20-25 मिनट तो बहुत कम है, श्याम प्रभु ने पहले ही बोल दिया था कि आपको 1 घंटा बोलना आपने तो 20 मिनट में ही यहाँ पे विराम दे दिया। आपको भी तो सुनना है। नहीं बस दीदी अब टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं। हाँ 10 बजे। अब यहीं पे क्लास को विश्राम देते हैं, बाकी चलो हरे कृष्णा, धन्यवाद। सबको मौका देंगे दोबारा। हरि बोल प्राण गोविंद प्रभु जी, आप हाँ जी बोलिए। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, मैं वैसे भी 12:30 बजे तक जगता हूँ। अरे नहीं 10 बजे सारे लोग चले जाएंगे तो मैं हूँ, आप सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं मैंने तो सब सुन लिया। Everybody want to listen to you प्रभु। अरे नहीं प्रभु जी, सबके लिए लेट हो रहा है, सबका सोने का समय भी है। आपको नींद आ रही है वो अलग बात है, बट आप प्रारंभ करिए। प्रभु जी बोलो, मैं भी सुन रही हूँ। ये देखो अभी सभी सब लोग सुन रहे हैं। चलो मैं सिर्फ 2 मिनट। प्रभु जी हमसे सुनने का सौभाग्य मत छीनिए, आप प्लीज बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें नींद नहीं आएगी नहीं तो। मैं बस 2 मिनट बोलता हूँ और 2 मिनट में गुरुदेव वाला 2 मिनट गुरुदेव वाले 2 मिनट तो आप बोल सकते हैं, फिर भी मैं इस समय का प्रभु जी 2 मिनट नहीं, कम से कम नहीं तो आधा घंटा, 40 मिनट कम से कम। दीदी इतना तो मुझे बोलने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा पता नहीं प्रभु जी, मैं ऐसा नहीं हूँ ना बाकी सबकी तरह कि अपने मन के भाव को एकदम से प्रकट करके रख दो, तो बहुत उनके लिए बहुत सहज था, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि अपने गुरु के प्रति जो हमारे भाव हैं वो हम प्रकट कर सके। मैंने मतलब मुझे याद है कि अभी कल नहीं परसों तो मैं एक दीदी की कथा सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि अपने मन के जो भाव हैं वो इतने गुप्त रहने चाहिए कि वो सबके सामने प्रकट होने से पता नहीं वो भाव दोबारा आए ना आए। वाकई में ये बात सत्य है कि वो भाव को ना हमको ऐसा गोपन रखना चाहिए, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि कैंफर की भांति, अगर वो कैंफर खुले में रख दोगे ना तो उड़ जाएंगे, लेकिन उसको संभाल के रखना है हमको, ताकि वो अंदर ही अंदर महकते रहे और उसको बढ़ते रहे। लेकिन फिर भी चलो मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम तो कर ही लेता हूँ। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव वांछिता श्री रूपम साग जातम सैकन रघुना विंधम सजीवम साद्वैतम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम कृष्ण देव श्री दादा कृष्ण प्रधान सैकन ललिता श्री विशाखन वांतांश श्री गुरु गरंग गंधर्व गिरिधारी राधा विनोद प्यारी जी की जय।
जय श्री गुरु ग्रंथ नमो विष्णुपादाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत मन गोस्वामी इति नाम्ने वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मन गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धर्म प्रणाम करता हूँ। उसके बाद परम गुरुदेव जय नित्य लीला पवित्र विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नित्य लीला पवित्र विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धर्म प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा यथा योग्य धर्म प्रणाम। हमने गुरुदेव की महिमा सुन रहे हैं पिछले 12-13 दिनों से, तो हर कोई अपनी अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कैसे हर कोई मतलब एक ही बारी में गुरुदेव के दर्शन करके उनसे हरिनाम हुआ और उनसे बहुत ही जल्दी उनकी दीक्षा भी प्राप्त हुई, तो बहुत सुंदर लगा मुझे। मैंने भी जब अपने गुरुदेव के दर्शन किए थे, मैं काफी बार बोलता हूँ इस बात को, और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन सबको पता लगे कि मेरे गुरुदेव की महिमा क्या है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं, उनकी महिमा को बखान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पवित्र करने के लिए उनकी महिमा का बखान करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अपना पहला दर्शन बताता हूँ, मैंने काफी बार बताया भी है। मैं एयरपोर्ट पे था, तो मुझे तो पहले भक्ति में जोड़ने वाले मेरे शिक्षा गुरु विनोद भैया हैं। मतलब उनकी कृपा नहीं होती तो शायद ही मैं भक्ति से जुड़ता भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐशो आराम में रहने वाला बंदा था, सारे ऐप करने वालों में से था। लेकिन फिर भी विनोद भैया मिले, उनसे पता लगा कैसे भक्ति होती है, भक्ति करते कैसे हैं। तब भी मैं उनको बोलता था कि नहीं भैया, आप सब जो कह रहे हैं, मतलब मैं उनको सर बोलता था, वो मेरे सीनियर हैं, एक ही सेक्शन में। तो मैं बोलता था नहीं सर, मतलब आप जो भी कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं ये सब छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इनसे तो मुझे इतना प्यार है, इसको छोड़ूंगा कैसे। तो मैं ना करता रहता था कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर मैं एक बार एयरपोर्ट पे था, मेरा काम था जजेस को लेना ले जाना। तो मैं एयरपोर्ट पे था, उस दिन मेरे जज की एक फ्लाइट लेट हो गई, तो विनोद भैया का फोन आया कि पुनीत वो भक्ति वेदांत वन महाराज जी आ रहे हैं, तो आप उनको रिसीव कर लो एयरपोर्ट पे। तो मैंने नाम भी पहली बार सुना था उनका कि हाँ कोई ऐसे महाराज जी हैं, तो मुझे तब ये नहीं पता था कि जो सन्यासी होते हैं उनको महाराज जी बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ भैया रिसीव कर लूंगा, क्या हुआ। तो मैं उनको रिसीव करने गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वो इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे थे। अब वो ऊपर एक्सकेलेटर से उतर रहे हैं और मैं नीचे खड़ा होकर उनके दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन जब मैंने पहली बार दर्शन किए तो बस मेरे आंखों से ना आंसू स्टार्ट हो गए। वो ऊपर एक्सकेलेटर से उतर रहे हैं, अभी मेरे सामने नहीं खड़े, अभी उतर रहे हैं और मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, और देखते ही मुझे आंखों से आंसू स्टार्ट हो गए मेरे। और उनको प्रणाम किया। मुझे नहीं पता था उनको कैसे मतलब रिस्पेक्ट देनी है, बस मैंने प्रणाम कर दिया सर झुका के अपना। फिर उनके साथ बेल्ट पे खड़ा हुआ था, सामान ले रहा था, तो उनको मैंने बताया कि वो विनोद सर हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने मुझे बोला कि आपको रिसीव करना है, तो मैं इसलिए आ गया, और मेरी अभी फ्लाइट भी है। लेकिन ये बात बोलता जा रहा हूँ और मैं रोता जा रहा हूँ। तो मेरे साथ एक अटेंडेंट भी था, जो मतलब अटेंडेंट होता है जो हमारा सामान वामान के लिए हमारे साथ हेल्प के लिए होता है। अब वो मेरे से पूछा जा रहा कि सर आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया। तो मैंने बोला यार मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, लेकिन जो मैंने उनके दर्शन कर रहा हूँ ना, तो मुझे अपनी जितनी भी बुराइयां है ना वो सब नजर आ रही हैं। मेरी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही है जिसको मैं लाइव देख रहा हूँ कि हाँ ये सब चीजें जो बुरी आदतें हैं जो मैं कर चुका हूँ, वो सब मेरे को नजर आ रहा है कि हाँ मैं ऐसा। तो ये तब तक हुआ जब तक मैंने गुरुदेव को छोड़ नहीं दिया। और जब मैंने उनको सी ऑफ किया, सी ऑफ करने के बाद भी ना मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में साधु के दर्शन से क्या फर्क पड़ता है। अभी जैसे मैंने अभी दीदी से बात कर रहा था, कुंजेश्वरी दीदी से, तो उनको मैंने बोला कि हाँ दर्शन है पवित्र करे ऐ तुम्हार गुण। तो वो जो दर्शन था ना, उसने मतलब वो दर्शन ने मुझे पवित्र करना शायद स्टार्ट किया था, या पता नहीं क्या था, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ वो रियलाइजेशन ऐसी थी जो मैं इस जीवन में तो कभी भूल ही नहीं सकता, ऐसी रियलाइजेशन थी। तो ये मेरे गुरुदेव की महिमा है। वो ही सदगुरु हैं जो
हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए उस अप्राकृत धाम से इस जगत में आए हैं, किस लिए? सिर्फ हम पे उद्धार करने, हमारा उद्धार करने के लिए। तो अभी सबसे मैंने सुना, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि कईयों के हरिनाम पहले दिन हुआ, कईयों की दीक्षा 2 महीने हुई। तो मेरा तो हरिनाम या दीक्षा मतलब ये समझ लो कि नाना करते हुई है। मैं करना नहीं चाहता था, मैं हरिनाम नहीं लेना चाहता था, मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता था। मैंने विनोद भाई को बोला था कि मैं हरिनाम नहीं लूंगा। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हरिनाम नहीं लूंगा। लेकिन धीरे धीरे हरिनाम हो गया। फिर मैं जब देखता था लोगों को दीक्षा ली हुई है, सब मंत्र पढ़ते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार नहीं भैया, हरिनाम तो हो गया, अब दीक्षा नहीं लूंगा, दीक्षा नहीं लेनी। लेकिन करते करते दीक्षा हो गई। फिर मैं चतुर्मास के लिए मना करता था कि मैं चतुर्मास तो पालन बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर काम ना गुरुदेव ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ पकड़ के करवा रहे हैं। मैं ना करता रहता हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तेरे से ही कराना है। तो हमारे गुरुदेव का चरित्र तो बहुत अद्भुत है। मतलब मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ गुरुदेव को। एक बार मैं गुरुदेव के साथ बैठा हुआ था इधर गोवर्धन में। तो गुरुदेव वो बॉइल्ड आलू खाते हैं, तो बॉइल्ड आलू खा रहे थे। तो मैंने पूछा, गुरुदेव आपके बॉइल्ड आलू खा रहे हो तो आपने इसमें नमक तो डाला नहीं? तो कह रहे यार ये ना जीवा बड़ी तेज है, आज मैं इसको नमक दूंगा तो ये पता नहीं कल फिर क्या क्या मांगेगी। तो देखो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने अपनी सब इंद्रियों पे अपना कंट्रोल कर रखा है। उनको जैसे गुरुदेव का जो रूप गोस्वामी जी का है ना, पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो जितने भी वेग हैं वो उनके कंट्रोल में है। उनको किसी पे आप कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल पे है। वो एक ग्रुप गोस्वामी जी का एक और श्लोक है, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। तो गुरुदेव हमारे सामने तो एक साधक होके वो दिखा रहे हैं कि हाँ एक साधक को कैसा करना चाहिए, कितने भी कैसे भी अवस्था हो अपने सभी नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, वो एक साधक के रूप में दिखा रहे हैं हमको। लेकिन सिद्ध रूप में वो क्या कर रहे हैं? सिद्ध रूप में वो अपने जो भावों में स्थित है उसका वो भजन कर रहे हैं। भजन होता क्या है? हम गुरुदेव के मुख से सुनते हैं भजन भजन। गुरुदेव ने एक बात बड़ा सुंदर ये बताया था कि भजन क्या होता है। भजन वो होता है जब हम अपने स्वरूप में स्थित होके जो राधा कृष्ण की जो सेवा करते हैं उसे भजन कहते हैं। अभी तो हमारी साधन भी स्टार्ट नहीं हुआ। साधन किसे बोला गया है? साधन बोला गया है जब हमारी स्वरूप सिद्धि होने लगी है, उसको लक्ष्य करते हुए जो हम साधन किया जाता है उसे साधन बोला गया है। अभी तो मुझे अपना लक्ष्य भी नहीं निर्धारित नहीं हुआ, क्योंकि जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हम उसको पाने के लिए मतलब दृढ़ संकल्प हो जाते हैं कि हाँ हम हमेशा परम गुरुदेव मतलब गुरुदेव के लेक्चर्स में सुनते हैं ना, डू और डाई। ये तब होता है जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब मेरी एज थी 25 की तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने लगा था। तब मुझे पता लगा गवर्नमेंट एग्जाम्स की यार गवर्नमेंट जॉब लेनी बहुत जरूरी है। अब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तो एक दृढ़ संकल्प था कि हाँ जब तक मेरी एज है मैंने वो करनी ही करनी है, चाहे जॉब लगे या ना लगे, लेकिन मुझे अपना प्रयास नहीं छोड़ना। तो ये जो चेष्टा मैंने उस सरकारी नौकरी के लिए करी जो तुच्छ है, जो कभी भी छीनी जाएगी, लेकिन वो प्रयास मैं अब इस भजन के लिए नहीं कर रहा जो वास्तविक मेरा लक्ष्य है। इसको मैं लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर रहा। एक्चुअली लक्ष्य निर्धारित करना ही कितना दुर्लभ है। मतलब विनोद भैया अभी एक बात बोल रहे थे कि लक्ष्य अगर एक निर्धारित हो जाता है ना तो हम उस पर चल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने में ही सबसे ज्यादा समय है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी तक सारा समय ना सिर्फ यही निर्धारित करने में लग रहा है कि मेरा लक्ष्य एक्चुअली है क्या। अब सब जैसे कि मैंने अभी बोला मनमोहिनी दीदी को कि हाँ वैष्णवों के अनुगत्य में रहोगे तो गुरुदेव की कृपा मिलेगी मिलेगी। तो मेरे ऊपर विनोद भैया की बहुत कृपा थी, उनके अनुगत्य में मैं रहता था और अभी भी मैं उनके अनुगत्य में ही हूँ। जब गुरुदेव नहीं होते तो वो मुझे संभालते हैं, मेरे हर प्रश्न का उत्तर वो देते हैं। अभी कुछ बात हुई थी मेरे मठ में, कुछ मेरे से किसी से खींचातानी हो गई थी, तो कभी ऐसा हुई नहीं लेकिन वो उस टाइम पे हुई। अब ऐसा हुआ क्यों? मैंने इसको बार बार अपने को चिंतन करा था कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों उन प्रभु जी पर गुस्सा किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने किसी वैष्णव के लिए सिर्फ मन में निंदा करी थी।
अब ये देखो, मन से निंदा करने पर भी इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि हम वैष्णव के मुख पे हम उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब मेरे भाई बहन हो। मेरा फर्ज है कि हाँ, जो गलती मेरे से हो गई है वो अब बाकी किसी से ना हो। अब ये भी गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है, मैंने गुरुदेव से इस बारे में बात करी थी, तो ये कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे रियलाइज उसी पॉइंट पे हो गया। हो सकता है जब मैं भक्ति से च्युत हो जाता या भक्ति छोड़ देता तब मुझे रियलाइज होता, लेकिन गुरुदेव ने मुझे उसी समय रियलाइज करा दिया कि पुनीत, कभी भी मन से भी किसी का बुरा मत सोचो या किसी के लिए निंदावाचक शब्द मत बोलो, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के जीवन में देखता हूँ कि उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं करी। वो हमेशा हमको सिखाते हैं क्या, अपने भजन पे, अपने साधन पे फोकस करो कि तुम क्या कर रहे हो ये देखो। तुम्हारी बुराई करने वाले लोग बहुत हैं, तुम्हारी अच्छाई करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ये शिक्षा भी हमको अपने गुरुदेव से लेनी चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव, मैं डायरेक्ट वो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग उनको पहले अपने घर पे बुलाते नहीं थे, उनको तब भी बुरा नहीं लगता था। आज उन्होंने उस घर का मालिक बना दिया उनको तब भी कोई खुशी नहीं है। तो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि उनकी कोई बुराई करे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके कोई अच्छाई करे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब शिक्षा लेने के लिए ही हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वरना टीचर्स तो बहुत सारे मिलेंगे हमको जो हमको अलग अलग राह पे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा टीचर जो खुद आचरण करके हमको शिक्षा दे, ऐसा टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं कि जो खुद साधक के रूप में वो मतलब हमको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब जैसे हमारे गुरुदेव क्या हैं हमारे गुरुदेव के मुख से आपने बहुत बार कथाएं सुनी है। अब वो किस भाव में स्थित है वो तब पता लगता है किसी के बारे में भी जब वो मुंह खोलते हैं। तो जब हमारे गुरुदेव कोई भी बात करते हैं तो उनका लास्ट मोटिव क्या होता है, भक्ति विनोद जी के कीर्तन, रूप गोस्वामी जी की शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की शिक्षा। अभी कुंजेश्वरी दीदी ने बोला कि हाँ, सर्वप्रथम मतलब सबसे श्रेष्ठ गुरु पूजा क्या है। तो ये प्रश्न अभी गुरुदेव ने विदेश में किया था कि जैसे कि सर्वश्रेष्ठ गुरु पूजा क्या है। तो उन्होंने बताया कि परम गुरुदेव ने गोवर्धन में मथुरा में ये बात बोली थी, जो रूप रति मंजरी जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, जिस भावों में स्थित रूप गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी कथाचित प्रथितो पूरे अस्मिन, मतलब इसमें रूप रति गोस्वामी रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो रति मंजरी के भावों में स्थित होके कह रहे हैं कि हे रूप मंजरी, मैंने तो सुना है कि पूरे ब्रज में आप सबसे सती नारी हो, लेकिन आपके पति तो विदेश गए हुए हैं। अब वहां पे जाने के बाद आपके जो होठ है उस पे जो ये लाल निशान है ये कहाँ से लग गया, लगता है कि कोई श्रेष्ठ शुक उस पे चोंच मार गया। तो जब ये मतलब ये सबसे श्रेष्ठ गुरु वंदना है, ये हमको कैसे पता लगती जब तक हम अपने गुरुदेव की कथाएं नहीं सुनेंगे। मैं पहले सबकी कथाएं सुनता था, लेकिन जब धीरे धीरे अब 6 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए हरि नाम लिए हुए, लेकिन अब जाके हल्का हल्का सा कुछ एहसास हो रहा है कि मेरे गुरुदेव की कथाओं में सब कुछ है जो मैं बाकी सब कथाओं में ढूंढता था। वो रस, वो तत्व, जो भी भाव हैं, वो मेरे गुरुदेव की कथाओं में सब कुछ है। तो हमको कहीं और जाने की ना जरूरत नहीं है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो जो कथा का वितरण, जो रस कथाओं का वितरण हमारे गुरुदेव कर रहे हैं ना, वो शायद ही कहीं और मिलेगी। मठ के कई लोग, कई ब्रह्मचारी मठ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पे रस कथाएं नहीं है, हम कहीं और रस कथाएं सुनेंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव बोलते हैं जब तक तत्व में मतलब आप प्रतिष्ठित नहीं हो, जब तक तत्व आपका क्लियर नहीं है, तब तक रस जो है वो उस पर टिकेगा ही नहीं। तो आप कहीं भी जाओ, जैसे गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं लड्डू मंजरी या ये मंजरी वो मंजरी, तो वाकई में बात सत्य है। मंजरी भाव कब स्थित होगा, जब हम तत्व में स्थित होंगे। बिना तत्व के ऊपर ये रस टिक ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मतलब अब तो समय बहुत सारा हो गया, मैंने 2 मिनट बोला था। चलो मैं अपने वाणी को ना यही विराम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बस अपने आखिर में ना गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आप अपने शिष्यों में ना सबसे लास्ट में बस मेरा नाम ऐड कर लीजिए, ताकि आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे और हमेशा वैष्णव का संग हमसे कभी छूटे ना।
हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर रूप से आपने वास्तव में वर्णन किया। मुझे पता है आपको नींद आ रही है, इसलिए आप जानना चाहते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा, जितने भी भक्त हैं सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी ही लगन के साथ श्रवण कर रहे हैं। इसमें से मैंने देखा कोई भी भक्त आपको छोड़ के गया नहीं, लेकिन आप ही ऐसा कर रहे हैं कि आप भक्तों से दूर जाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब भक्तों की महिमा है। देखिए मैंने अभी देखा ना अर्जुन सखा प्रभु को, ये सरलता जरूरी नहीं है कि जो बाद में आए हैं उनके अंदर सरलता होगी, जो बाद में भी जुड़े हैं वो कितना सरल है। अर्जुन सखा प्रभु ने अपना समय इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी धर्म पत्नी ने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया था, मतलब लिया नहीं था लेकिन उनको लगा कि उन्होंने समय ज्यादा ले लिया। तो ये सरलता हमको इन सबसे सीखनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पहले से मठ में हो तो तुम ही श्रेष्ठ हो, नहीं, कोई बाद में भी आया हो सकता है उसका भजन तुमसे अधिक हो। तो बस यही जो गुरुदेव के वचन है ना, बस ये हृदय में आ जाए, जीवन में उतर जाए, इसी की बस प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से। नहीं तो मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि आप आए इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। मेरे कहने का सीधा मतलब यही है, लेकिन बहुत सुंदर रूप से आपने वास्तव में वर्णन किया। जो गुरुदेव की जो विशेष जो भाव है वास्तव में राधा दास्यम वाला, वो आपने मतलब लास्ट में वो प्रकाशित कर दिया कि इसी भाव के लिए गुरुदेव आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और आपने इतना अच्छे रूप से सारी चीजों का वर्णन किया और सबको बहुत अच्छे से मौका दिया, किसी को आपने रोका नहीं। समय के अभाव के कारण ये आपका हृदय दिखलाता है कि कितना दिव्य है, कितना बड़ा है, उदार हृदय जिसे कहते हैं। और वो वाली सरलता यहाँ पर तो दिखाई दे रही है संपूर्ण रूप से आपकी, कि आपने समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग जुड़े रहे उनको भी हृदय से धन्यवाद। और सबसे प्रार्थना है कि सब लोग जुड़े रहें और इस चीज को श्रवण करें। कोई सी के श्रवण करने की इच्छा नहीं है तो भी ऑन करके बैठ जाइए। एटलीस्ट एक ऐसा शब्द इस 1.5 घंटे में आपके कान में जाएगा कि निश्चित ही वो आपका कल्याण करेगा, क्योंकि ये वैष्णव की महिमा है, कोई साधारण जीव की महिमा नहीं है। दूसरी बात ये थी, मेक्सिको वाले प्रभु जी ने बोला ना कि गुरुदेव ने बोला मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हृदय रूपी दक्षिणा चाहिए। देखो किसी के मुख से कब कौन सी बात निकल जाए हम नहीं जानते, तो वाकई में ये दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है जो हम गुरुदेव को दे सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने परिवार वालों को दे रखी है। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे इस जीवन में नहीं किसी जीवन में तो आएगा ही आएगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। बट ये है कि अभी हम लोगों ने विचार किया था कि सैटरडे हम इसे समाप्त करेंगे, लेकिन बहुत सारे भक्तों का भाव ये है कि अभी बहुत सारे भक्त बोलना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग पूर्णिमा तक इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। पूर्णिमा के दिन लास्ट रखेंगे, ऐसा अभी तक का विचार है। तो अच्छा, सबको आप मौका सबसे मिला। प्रार्थना है, बहुत सारे भक्त आप हैं सबसे। जो बैठे हैं। और श्याम जी ने कीर्तन नहीं किया एक बार भी, नरसिंह कीर्तन, तो श्याम जी आप कब करेंगे? हरे कृष्णा श्याम सुंदर जी, आप वो नरसिंह आरती कब करेंगे, नरसिंह कीर्तन? ठीक है, बस आपकी पुष्पांजलि हो गई। चलो फिर श्याम जी कभी नरसिंह कीर्तन करेंगे, नरसिंह देव जी की आरती करेंगे, बहुत सुंदर रूप से करते हैं। तो ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्राण गोविंद प्रभु और समस्त भक्त लोग जितने भी हैं हमारे। अर्जुन सखा प्रभु ने इतने सुंदर रूप से वर्णन किया